Hi, this is Yukta Mukhi, and I look forward to meeting all of you. I'd encourage you to watch my interview with Nandini on Filmy Mantra. Priyanka Chopra Chorus. What would that be? Nothing. Nothing? No. Because she's junior to me. She was the one taking advice from me. Aishwarya also very dignified, very graceful, very classy. यू नो जैसे वो बात करती हैं आप उनके बात करने में ही आपको समझ में आता है कि दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी हैव टू फॉलो। डायना हेडन ने मुझे इतना मोटिवेट किया था, उन्होंने मुझे कंपटीशन के पहले फोन पे कई बार मैं उनसे बात करती थी, मुझे ये बात का कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी, वहां जाके ये होगा, फिर मैं कैसे करूंगी। हर क्षेत्र में अपना ग्लोबली इवन कैन्स में या हॉलीवुड में जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने हमेशा और उनके मुख से आज तक किसी के लिए कुछ बुरा नहीं निकला है। Aftab Shivdasani was your Aftab was my co-star. co-star. Yeah, he was kind. He used to sometimes help me. देख ये नहीं हो रहा है, ऐसे कर ले, ये देख ऐसे नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा ऐसे try कर ले. He would kind of give me some tips. तो बॉलीवुड में आपकी फ्रेंडशिप कैसी थी? फ्रेंड्स हैं आपके बॉलीवुड? Friends तो नहीं होते हैं कभी बॉलीवुड में। जिन्होंने आपको गाइड किया कि वो पॉपुलर है थे पॉपुलर थे और हैं भी अभी तक? अभी नहीं है। अच्छा। बेशक जिसने बुरा किया उसका कुछ नहीं हुआ है। Hello everybody, this is me Nandini Roy. Welcome to my show Get Candid with Nandini Roy, only on Filmy Mantra. Today I have a special guest. She's an Indian actress and she rose to fame when she was crowned as Miss World in the year 1999. She is none other than the stunning, the gorgeous, and the girl with the heart of gold. Well, Yukta Mukhi is not just a former Miss World or an actress, but she's also a proud mother to a beautiful soul, and that's her son, Aryan. Well, let me tell you all that she's also a motivational speaker and she has transformed very beautifully into this spiritual person. Well, let's dive deep into her fascinating life story and gain some insights into her life, career, and perspective. Let's welcome Yukta Mukhi. A warm welcome to you on my show yet again, but on different channel. Yes, Nandini. So good to see you. It's been more than 1 year actually. Yeah. And just before we started recording, हम share कर रहे थे that it's rare that people stay in touch. Yeah. You know, it's nice that we could stay in touch over the Yeah. 1 year. And I am grateful that you really instilled that kind of confidence in me, and आपने बहुत बुरे समय में मेरी help की है. Emotionally, you have been there for me and for my family, regularly asking for my brother. Even when he was alive, you would keep on messaging me, how is Rahul doing? And when he, of course, left us, then also you always kind of kept a check on me whether I'm doing good or not. ऐसे तो कोई आर्टिस्ट कभी मतलब नहीं करता है, and this was a treat. I was delighted and I will forever be grateful. Thank you. Thank you for your acknowledgement. And you know, I feel losing a very immediate family member is the hardest loss to bear. मतलब आप यहाँ बैठे हो, मैं तो हैरान हो रही हूँ कि how your family is coping, and you know, it's not just a loss of a person, it's really a loss of everything that you have in life. When it's your Yes. own brother, it's like immediately इतनी young age पे, it's And the only so son tough. to my parents. Unbearable है And the उनके only लिए। brother. अनबेरेबल है ग्रीफ। एंड यू नो ग्रीफ इज अ स्मॉल वर्ड, ऐसे में लगता है अच्छा उनका ग्रीफ है, उनका दुख है, पर जिस पे बीत रही होती है जिस उस समय उनको पता होता है कि क्या लेवल पे हम जो है सफ़र कर रहे हैं। एंड Absolutely. आई एम श्योर इवन ही इज some way staying connected. He must be. I feel that a lot of times that Yeah, he's around me, or yeah, I could feel his presence. it's very important. You know. आपने चैनलिंग करवाई है कभी कोई मैसेजेस, जैसे कभी हम लोग बोलते हैं ना लेट्स कम्युनिकेट विद द अदर Yeah, साइड, देयर आर पीपल once who I got it done, I Yeah. didn't ask. So I'll tell you who did it for Please, me. I'd It like was to know. Smita Jaikar ji. Oh, You know her? Yeah. Smita Jaikar. So She does this? she does this. So she was an Interesting. actress. She's still Yes, into yes, acting. of course. But वो ये भी करती हैं, spiritual inclination है उनका, और healing करती हैं, I Reiki know करती हैं. spiritual inclination है, but I didn't know she does this like. Yeah.
So the other day we went out for dinner हाँ. and it was just a casual dinner and अचानक से she's like, did Rahul like this? Did Rahul like perfume? Did Rahul like vehicles? ऐसे कुछ कुछ चीजें जो बहुत रेजोनेट हो रहा था मेरे भाई की. And very personal. हाँ, it's like Rahul is communicating with me and we were having dinner and then I said, please क्या कह रहा है वो? And then she's like, he's saying I'm in a better place. I want to be here. I'm happy. You all please move on in life. I'm happy. That's what he said. That's what loved ones do. They don't want And their... I couldn't believe that my brother's soul was talking and communicating to Smita Jaikarji. You know, achanak se, all of a sudden. And the very next day, I was supposed to fly down to Patna for my brother's birthday. And then I told my mother and father that he's in a better place. So at least एक satisfaction थोड़ा तो उनको लगा होगा, because coming this from that kind of stretcher like Smita Jaikarji is very much into spirituality. So she's a very senior person and very experienced with life also. Yeah, she has seen so much. I know कि आपकी भी जिंदगी बहुत ग्लैमराइज थी. I know your story, but ज्यादा लंबी तो नहीं बोलूंगी आपको बात इस पे करने, because फिर लंबा हो जाएगा इंटरव्यू. एंड इतना हम जरूर रिकैप करते हैं कि पिछली बार जब हम साथ मिले थे तो पिछले इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप मुलुंड में जो है आपका रहना शुरू हो गया था. 8 साल की उम्र में आप अबू धाबी से वापस आई थी. एंड देन आपकी स्कूलिंग अच्छी थी, आप स्पोर्ट्स में अच्छे थे. एंड फ्रॉम देयर आप जब कॉलेज में गई तो वो आपका थोड़ा एक रिबेलियस कह सकते हैं. आपने खुद के लिए स्टैंड लिया अपने पेरेंट्स के सामने that I want to be this beauty queen, I want to give it a try. And then that's how things started unraveling for you. So we are going to start from your little bit of childhood, little bit of है ना? I think where I would like to possibly even sort of bring my memories back is when as a young girl I was a lot into public speaking, elocution, competitions होते हैं school, inter-school. And I would prepare these very long sort of subjects कि अच्छा ये उन्होंने topic दिया है, अभी उस पे मैं essay लिखूं and what will be my points and how am I going to debate. And that kind of was the very beginning of me building that stage confidence. Okay. तो वो एक था. एंड द अदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ वाज कि मैं शुरू से बहुत अध्यात्म में रही हूँ. तो गुरु के आश्रम में जाना और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सत्संग वगैरह होते थे, अभी भी होते हैं, बट उस समय जब होते थे तो वी हैड टू प्रिपेयर. जो सत्संग का भी सब्जेक्ट होता था तो सिमिलरली वी हैड टू रियली डू अ लॉट ऑफ होमवर्क. उसमें आप अभ्यास तो करेंगे उनके जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में, लेकिन फिर हम मनन चिंतन करते थे. अच्छा. कि अच्छा अभी ये सब्जेक्ट पे टॉपिक पे मुझे क्या बोलना है, एंड फिर वो बोलना. तो उसमें भी एक सॉर्ट ऑफ आपके जैसे हम लोग अपने शास्त्रों में कहते हैं एक नॉट अ वाक, उसमें एक वाक शुद्धि आ जाती है जी. एक पावर ऑफ स्पीच आपकी डेवलप होने लगती है. जी. एंड हाउ टू डिलीवर, हाउ टू सॉर्ट ऑफ बी इन द पब्लिक ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. So those two things I felt, अगर हम देख रहे हैं जर्नी में कि how I sort of built my aspects of the personality, कि जैसे हम बोलें कि कैसे तैयारी हो रही थी आगे के जीवन के लिए. एंड आपने जो मिस वर्ल्ड का जो मिस इंडिया का जो पेजेंट का जो आपने एक पहला कदम जब रखा अपने पेजेंट्री इंडस्ट्री में, और वो जो फॉर्म फिल करना था आपको, फोटोग्राफ्स भेजने थे, your parents were not aware of this. My parents were partly aware of it, but they thought कि ठीक है कुछ कर रही है. They were not so sure कि they didn't think कि she's going to go, like this is her goal and this is her target. But उन्होंने oppose तो नहीं किया था. They definitely did support, but they were not sure कि what is her plan. मतलब अभी तो कॉलेज में है, अभी तुम पढ़ोगे या तुम मीडिया में जाओगे, क्योंकि तुमको मॉडलिंग का तो एक्सपीरियंस है ही नहीं. So how do you plan to? And then of course, when they realize कि सिलेक्शन हो गया है तो फिर तो ऑल आउट सपोर्ट था उनका पूरा. मुझे उस दिन पे ले चलिए जब आपको फोन आया कि युक्ता, you are selected, you have been selected and you need to, ऐसा ये कॉल का दिन मुझे जरा बताइए कैसा था. It was very interesting नंदिनी. वेस्टर्न रीजन से वो लोग क्या करते हैं, जब एक तो पहले अनाउंसमेंट आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ये डेट तक आपके फॉर्म्स पहुंच जाने चाहिए. सो आप फोटोग्राफ्स अपनी भेज के
एंड देन दे क्रिएट अ जोनल सिलेक्शन प्रोसेस. मतलब अगर दिल्ली में वो लोग कर रहे हैं तो दे हैव द दिल्ली पीपल, चंडीगढ़, हरियाणा, जो भी है सब, वहाँ से जो नॉर्थ की गर्ल्स हैं, दिल कम एंड मीट इन दिल्ली. सिमिलरली दे डू इन कोलकाता फॉर ईस्ट ऑफ इंडिया. तो वेस्ट में जो था वो, मुंबई में अब क्या है, फैशन इंडस्ट्री है. सो यू कांट से ओनली बॉम्बे गर्ल्स आर कमिंग. यू नो दैट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडलिंग फ्रेटर्निटी से, जो बैंगलोर से भी कोई टॉप मॉडल्स हैं, या ऑलरेडी हमारे इंडिया के जो नामचीन, यू नो, लाइक गायत्री जोशी वाज आल्सो विद अस. सो टू सी दैट एवरीबडी इज हियर इन बॉम्बे, it you do feel कि कैसे होगा क्या नहीं होगा. But it was very interesting. So about 200 girls had come, and उसमें से we had to slowly sort of keep, you know, going through some interviews process, and उसमें selection हुआ. तो करते करते जैसे छंट रहे थे, we were also looking at each other. अभी nobody knows each other. Some girls may start talking and getting friendly, but the point is that everybody is nervous and everybody is feeling कि क्या मेरा selection होगा या नहीं होगा. सो उसमें जैसे 200 से धीरे धीरे हम घटते चले गए ना, इट केप्ट बिल्डिंग अप. लाइक बाय आफ्टरनून 50 हो गए थे, फिर शाम तक 40-30 तक आ गए थे, एंड देन फाइनली दे केम डाउन टू अबाउट 28, जिसमें कि उन्होंने बोला कि यॉल आर फाइनली सिलेक्टेड. तो मतलब शाम के 6-7 बज गए थे. So then from there we started a training process. Miss India के टाइम पे प्रोफेशनल्स आते हैं आपको, it's almost like a boot camp. अभी तो चलो the girls stay together, हमारे टाइम पे नहीं था. We had to travel every day up and down. अच्छा. And we had to go in the morning. बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हम लोग रहते थे. कैट वॉक करना कैसे है, बैठना कैसे है, हर चीज़ के बारे में आपको बात कैसे करना है. सो हेमंत त्रिवेदी एंड नयनिका चैटर्जी वर आवर कोचेस, सबीरा मर्चेंट, कई सारे ऐसे लोग थे who had you know, who were given the responsibility of coaching us into becoming. But I want to know more about this training session because अभी पिछले महीने मैंने 2 पेजेंट विनर्स के इंटरव्यूज करे थे, एंड मैंने उनसे डिटेल में जानने की कोशिश की थी कि क्या होता है वो ट्रेनिंग सेशन में. मतलब किस तरह का माहौल होता है, कितना टॉर्चरस होता है, कितना देखिए आपकी हंसी बता रही है कि टॉर्चरस रहा होगा. टॉर्चरस तो होता है बहुत ज्यादा. You have to look a certain way, and you know there are girls who develop body dysmorphia in order to look slim, and how You're much more can you be slim if you're already very thin? Because मैंने देखे इतने सारे pageant winners या contestant को, they're already very thin and good shape, उसके बाद भी they are compelled to lose weight. And Nandini, I had a huge realization, not only just during the pageant but definitely after I won the Miss India as well, कि इतना जो हमारे ऊपर हमको जो बोला जा रहा है कि आपको इस तरह से दिखना है, ये स्टैंडर्ड्स कौन सेट कर रहा है और हम उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं. So at that age, of course, when I was going through the very first initial process, तब तो मैं बिल्कुल न्यू थी. एज आई सेड, आई हैव नेवर डन मॉडलिंग. मैंने कभी भी जीवन में कोई ऐसा काम ही नहीं किया था. फेसिंग द कैमरा, वॉकिंग ऑन द रैम्प, मुझे पता ही नहीं था. सो यू टेंड टू थिंक अच्छा जो बोल रहे हैं शायद आई नीड टू डू दैट. बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, जैसे कि आपने कहा, जब हमें भी लगता है कि आई थिंक नाउ आई एम लुकिंग गुड, इतना तो पता चलता है हमें कि आई डोंट नीड टू बी थिनर देन दिस, देन इट गेट्स अनहेल्दी. Then it's unhealthy, not only just physically but mentally also. Because if you're not eating well, you're not feeling good, full, I don't know, it's not that's not the way young girls need to be told. And I feel, तो उसके बारे में मैंने 1-2 बार शायद मीडिया में बोला भी था, and I was heavily criticized for it. Of course, बहुत कम लोग जो अच्छी बात बोलते हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है. सत्य के लिए, सत्य बोलने के लिए थोड़ी सी ज्यादा करेक्ट. और वो भी अगर औरत बोल रही है, किसी चीज पे आवाज उठा रही है इतने बड़े एसोसिएशन पे, तो जाहिर सी बात है. So I had then reached a point where I said, no, I'm going to just eat healthy. I'm just going to like stick to a diet. Of course, I don't want to start eating कि रात के 2 बजे हम पिज्जा खा रहे हैं. ये सब तो नहीं करना. This was when, during this session? This was after I won the Miss India, but before I went for Miss World. So I had a huge gap क्योंकि Miss India हुआ था जनवरी में, और Miss World pageant मेरा था नवंबर में. So I had that much time to एक तो finish my graduation, जो मेरी बीच में छूट गई थी. इनफैक्ट वो कॉलेज ने मुझे सस्पेंड कर दिया था. Then they realized, no, she's won the Miss India, we better take her back. She's
pride of our she's college. not only the pride and she's willing to complete her studies, so we need to support her. तो फिर उन्होंने बोला नहीं आप आइए और आप complete करिए अपनी graduation. So it was very interesting because मैं college जाती थी and there would be girls standing outside the main door waiting for an autograph and they would be waiting कि ये मैं हमारे college की Miss India है. And it was fresh. It was very. It was interesting my journey. I myself realized कि ये तरीका sustainable भी नहीं है, ये हमारे लिए healthy भी नहीं है और ये it's not right. It's not right to make somebody feel small. किसी के standards बोल के कि हमारे और Indian bodies जो हैं is we've always seen our mothers, grandmothers very curvaceous. Right. We don't need to be thin and stick like. तो ये कौन स्टैंडर्ड सेट कर रहा है? ये वेस्ट से आ रहा है, ये फैशन इंडस्ट्री के द्वारा इम्पोज किया जा रहा है. So it's up to us how much we want to accept and go with it. We have to stand strong. We have to stand tall. और हमें बोलना चाहिए कि इतने तक करेंगे और बस. It doesn't make you less beautiful. Right. It doesn't. In fact, it makes you more appealing and attractive when you own your body and you feel confident कि this is who I am. This is my natural body. Correct. ठीक है, fitness एक level तक हम understand कर सकते हैं. But beyond that, it should not become where it's affecting your health. जैसे आपने बोला. Yes. बुलिमिया हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, यू नो मेंटली दे फीलिंग डिप्रेस्ड, या वो किसी इतने कंपैरिजन में, इतने कंपटीशन में वो अपने आप को कम ही समझते जा रहे हैं, अपनी अच्छी क्वालिटीज को आगे देख ही नहीं पा रही हैं. एंड दीस आर यंग गर्ल्स. एंड अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को अपने ऊपर थोपने की पूरी कोशिश Absolutely. इन ऑर्डर टू विन द पेजेंट. सो क्या आपने भी ऐसे इमोशंस महसूस किए थे उस दौरान? वही फर्स्ट टाइम तक मैंने किए एंड देन बिकॉज आई हैड दैट टाइम पीरियड बिफोर आई वेंट फॉर द मिस वर्ल्ड, आई सेड आई एम गोइंग टू बैलेंस दिस आउट. मेरे से जितना होगा मैं उतना करूंगी. यू नो आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स माई सेल्फ बियॉन्ड अ पॉइंट. एंड जो ट्रेनर्स थे वो बोलते जा रहे थे कि नहीं नहीं आप और अपनी डाइट कम करो और आप और ये करो, बट आई जस्ट न्यू दैट आई एम नॉट गोइंग टू पुश माई सेल्फ लाइक दैट. बिकॉज आपको लगा नहीं कि मैं अगर इनकी बात नहीं मानूं और अगर मैं एक सर्टेन वेट तक ना पहुंचूं तो ये लोग मुझे आगे क्या पता, यू नो मीन्स जो इंडिया के ट्रेनर्स थे, या बट दे हैव नो से व्हेन यू आर ऑलरेडी गोइंग फॉर द मिस वर्ल्ड. ओके. Their job is to train you. फिर उसके बाद जब आप वहाँ पर जाते हो इंटरनेशनल पैजेंट के लिए, you're already selected once, तो फिर या you're a Miss India, आपका ऑलरेडी वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगा वही काउंट किया जाएगा. So I think that is where your inner confidence has to come in. Yeah. Right? How much you feel comfortable with your own body and your own skin, और कितने तक आप किसी की आवाज को अपने अंदर अफेक्ट होने दे रहे हैं. So that's a decision that everybody has to make, and that's not just कि सिर्फ pageant के लिए है वो. That's true for life ना नंदिनी. कई बार हम देखते हैं कि हमारे पर इतने सारे ओपिनियन, और आजकल तो सोशल मीडिया में इतना एक लेवल ज़्यादा ही हो गया है वेर ऐसी कि यंग लड़कियां देख रही हैं, उसको लाइक्स नहीं मिले एंड इट अफेक्ट्स हर. उसने कोई अपनी फ़ोटो डाली है, सेल्फी डाली है और कुछ किसी ने गलत कमेंट कर दिया. तो ये चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरीके से असर कर रही हैं लड़कियों पे, एंड आई फील इट शुड नॉट हैपन. और सोशल मीडिया क्या बन गया है अब, ऐसा लगता है जैसे एक सॉफ्ट पॉर्न चल रहा है. और ये सिर्फ शहर की लड़कियां नहीं बल्कि गांव की भी अगर आप देखेंगे तो लड़कियां, आंटियां, बूढ़ी बुजुर्ग औरतें भी कुछ अजीब से साड़ियों में अजीब से पोजेस करते हुए अजीब से गानों पे डांस कर रही हैं, अजीब से बॉडी जेस्चर्स बना रही हैं. आप इंस्टा खोले तो ये सब आ ही जाते हैं रैंडम रील्स. I don't know where are we heading as human beings. We really have to come back to our culture, and ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हम डिफाइन करें विश्व के लिए कि ब्यूटी का स्टैंडर्ड होता क्या है. एंड वी ओनली हैव टू लुक टू आवर एंसेस्टर्स. तो हमें ये मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री से थोड़ा सा हटके जो है वी हैव टू रियली थिंक कि हम, जैसे आपने बोला, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम आने वाली यंग जनरेशन के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. बिल्कुल. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि पेरेंट्स गाइड करें, मदर्स गाइड करें, या आसपास में जब जैसे लोग हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई लड़की आती है और वो बोलती कि उसको प्रिपेयर होना है पैजेंट के लिए, प्लीज़ आप मुझे गाइड करिए, प्लीज़ आप मुझे बताइए कैसे करना है. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि इसको छोड़ के आपके पास और तो कोई टैलेंट्स होंगे. आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारे गुण हैं, तो आप उन पे भी फोकस करिए सो दैट यू डोंट फील कि केवल एक ही चीज़ पे मैं डिपेंडेंट हूँ. पहली बात तो.
और फिर आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, उतना आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सो पूरे पेजेंट्री इंडस्ट्री को आपने देखा है, बहुत गहराई से देखा हाँ है. जी, हाँ जी. तो आप बहुत खुश नहीं थी उनके कई सारे प्रोटोकॉल्स, रूल्स और रेगुलेशंस और उनके खुद के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के जो उनके हाँ. रूल्स थे. तो आप चली तो जरूर गई थी पेजेंट में, बट इतना कुछ नहीं सोचा था पहले कि ऐसा चाल चलन है, इस तरह की चीजें अंदर होती है. एम आई राइट? सो दिस जो आप जो बोल रहे हो विद रिगार्ड्स टू द फैशन इंडस्ट्री ना नंदिनी, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा बहुत बाद में आया. हाँ. बिकॉज मिस इंडिया के बाद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ मॉडलिंग भी नहीं करी. एज आई सेड आई वाज बिजी. मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा किया मैंने, और उसके बाद सीधा फिर तैयारी में लगे मिस वर्ल्ड के लिए. तो मिस वर्ल्ड जब आप जीतते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में डाला जाता है, और वो फिर उनके हिसाब से जो उनके जो असाइनमेंट्स होते हैं, आपको वहाँ वहाँ ट्रैवल करना है, या करेक्ट. वो जैसे बोलेंगे कि ये कॉज के लिए हम कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, या कहीं कोई चीज़ के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, जो भी है, तो वो अवेयरनेस रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आपका प्रेजेंस होती है एज अ मिस वर्ल्ड. आप वो ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट. तो उसमें फैशन का उतना बड़ा रोल नहीं आता है, टू द एक्सटेंट कि कोई ब्रांड नहीं डिक्टेट कर रहा है आपको. हाँ. बट मिस वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो रूल्स हैं वो डेफिनेटली फॉलो करने, क्योंकि एक स्टैंडर्ड है डेफिनेटली. बट उसमें वो कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको इतना वेट होना है, हाँ, आपके ये इतने तो मेजरमेंट्स हो ट्रेनिंग रहे हैं. पीरियड में बनने से पहले प्रीरेक्विजिट्स हैं ये. अब जब हाँ नहीं, बन बट गए, इवन जब बन विनर हो गए गए, तो फिर तो भी आपको मेंटेन तो करना ही है. अच्छा, दैट वो इज पूरे एक साथ. साल तो मेंटेन करना है. मतलब आप ये नहीं कह सकते अब मैं खा रही हूँ पी रही हूँ, अब मैं फ्री हो गई, बिकॉज यू आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट. हरनाज संधू ने हाँ. वेट पुट ऑन कर लिया था, and she was criticized so badly. सो दिस शुड नॉट हैपन. दिस इज व्हाट आई फील. अगर उन्होंने वेट पुट ऑन किया, पहले तो हम अंडरस्टैंड करें क्या इमोशनली शी इज गोइंग थ्रू समथिंग. इज शी फीलिंग डिप्राइव, मतलब क्यों ऐसे उनका, और उनको किस तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको क्या क्या चीजें जो हैं, क्योंकि अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट में है. यू नो दैट 1 year दैट शी इज सर्विंग एज मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो वो प्रोफेशनली शी इज रिक्वायर्ड टू डू सर्टन थिंग्स, जो कि कई बार हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है. आपको लेट नाइट फ्लाइट्स लेनी है, या कहीं पर पहुंचना है, और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इतने इतने लोगों से मिलें, आप सबको फोटोग्राफ्स दें, आप सबसे अच्छे से बात करें. सो देयर आर टाइम्स कि आप कभी थके होते हो, या कोई और चैलेंज आई होती है, डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन वो इवेंट कैंसिल नहीं हो सकता है ना. सो आपको दवाई लेके वहां पहुंचना है. यू हैव टू बी अवेलेबल एंड यू हैव टू बी प्रेजेंट इन योर बेस्ट मूड. आप वहां जाके नहीं बोल सकते मुझे बुखार है, अब मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं फोटोज नहीं दूं. अब वो पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये कई सारे ऐसे प्रेशर्स होते हैं जिनको हमें यंग एज पे फेस करना होता है. सो इमोशनली आई फील लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है. एंड जैसे मैं पहले कह रही थी कि ये स्टैंडर्ड्स को हमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी से, थोड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल से, और थोड़ा एक कंपैशनेट लेवल से सपोर्टिवली हमें देखना है कि ये लड़की को भी इस समय क्या चीज़ की ज़रूरत है. सिर्फ उनको बोलना कि नहीं आपका ये वेट होना चाहिए, आप ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, या ये फैशन इंडस्ट्री का डिक्टेट्स हैं, is not a reality. Nobody lives like that. Also about swimsuit round, I think Aishwarya Rai Bachchan, she was really vocal about it and she objected that, although she had to go through that round. मतलब बाद में उन्होंने कई सालों के बाद उन्होंने जरूर आवाज उठाई थी इस पे. अच्छा, I'm not aware of it. क्या बोला था swimsuit round का क्या मतलब रेलेवेंस है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? एक so she was really fumed with anger and later on तो चला ही गया था ना. अब swimsuit round कहाँ होते हैं? होता भी होगा तो it's done privately. I'm very sure कि वो निकालेंगे नहीं, क्योंकि why would you say that? See, I've not been judging or pre-judging anything last 10-15 years. तो मैं बिल्कुल ही focused हूँ on my mothering journey, so I'm not updated, but I know for a fact कि उनको एक आपका fitness level देखने के लिए, और आप रैम्प पे किस तरह से चल रहे हैं, बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ द, उन्होंने उसको एक सॉर्ट ऑफ एक बेंचमार्क बना के रखा हुआ है, जो कि हम आपसे वही हम बात करें कि वो गलत है. फिटनेस कोई और कपड़े में भी देख सकते हैं ना. नहीं, फिटनेस देखने की जरूरत है क्या? फिर आप किसी को दौड़ा लो ना मैराथन में, फिटनेस कंपटीशन थोड़ा ना हो रहा है. करेक्ट. सो दे डोंट नीड टू सी योर बॉडी इन अ सर्टेन वे, बिकॉज एट सम पॉइंट आई फील कि एक सॉर्ट ऑफ एक ये आपको बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि
maybe if you have to do a fashion brand, or maybe when you have to be on this ramp for modeling clothes for a fashion designer, तो आप उसको किस तरह से कैरी कर पाएंगे. अगेन एज वी आर सेइंग, उसके लिए स्विम सूट की आवश्यकता नहीं क्योंकि है. हमने तो स्विम सूट तभी बिल्कुल. पहना है जब पूल में जाते हैं. उसका प्रैक्टिकल ये होना चाहिए ना. Correct. जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल पर्पस होना चाहिए, जो कि इस इधर मैच नहीं जा रहा है. वो उसका कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है साथ में. सो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू चेंज. लड़कियां आवाज उठाएं, लड़कियां अपने आप को असर्ट करें, लड़कियां उसके अगेंस्ट बोलें या खड़ी रह जाएं, एक साथ हो जाएं और बोले कि भाई हम ये नहीं करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं, इसको चेंज करो. Times are changing. We have to move with the new generation. Right. So the new generation also has to be strong enough to say those things, है ना? जैसे हम कह रहे हैं कि speaking your truth. Yeah. And that's what being a role model or being a public figure is about. अगर आप अपना सत्य बोल ही नहीं पा रहे हो, आप किस चीज के लिए खड़े हो, आपको पता ही नहीं आपके ओपिनियंस क्या है, आप किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हो, then people are going to dictate you. Correct. है ना? और अभी तो ऐसा हो गया आपके वक्त में, जब ऐश्वर्या राय और आप थे, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, आप सबके टाइम पे हम इंतजार करते थे कि यू नो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशंस देखेंगे. वी वर एज इंडियंस आल्सो वी वर रियली ईगर टू वॉच. टीवी खोल के बैठ जाते थे कि आज मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन है, ग्रैंड फिनाले है. क्योंकि तब नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था ना उस टाइम पे. एज इन हम ग्लोबलाइजेशन आ रहा था, लिबरलाइजेशन आ रहा था. वी वर गेटिंग एक्सपोज्ड टू दीस थिंग्स इन ग्लैमर वर्ल्ड, एंड न्यू चैनल्स वर बीइंग that was the time media was picking up in a way which we felt ki there's something so great about it, there's something so glamorous about it. So but उसकी आड़ में बहुत कुछ छुपा हुआ साथ में जो आया है, that has, I feel, disconnected women from their bodies, taken us away from our culture, and brought a lot of disrespect to women. I feel very strongly कि इस पे हमें ना केवल चर्चा करनी चाहिए, लेकिन इसको बदलने के लिए हमें वो सारे एफर्ट्स भी लेने चाहिए. क्योंकि यंग लड़कियां जो बस टीनेज में भी आ रही हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है. ये बदलाव कौन लाए? रिस्पॉन्स ऑफ एवरीबॉडी, सभी का होगा. विशेष तौर पर जो पर्दे पे सामने दिखती हैं जी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बिकॉज मैं पर्दे के सामने हूँ ही नहीं. उसके बारे में बात करेंगे. बट आई एम सेइंग जो हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. एंड ऑल्सो पीपल लाइक यू, जो जर्नलिज्म के द्वारा और मीडिया के द्वारा लोगों तक ये आवाज पहुंचा सकते हैं. यूनानिमस होना चाहिए ना, एक इंसान के बोलने से, एक चैनल के बोलने से नहीं होगा. एक चैनल के बोलने से नहीं होगा, बट जब सब साथ में आएंगी, हम लोग जो महिलाएं जब सब साथ में आएंगी, तब हमारी आवाज स्ट्रांग होगी. जैसे आप बोलो, अगर मैं अकेली बोलूं या आप अकेले बोलो, तो इवन आई फील कि मैं अकेली बोल रही हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है. बट बोलना जरूरी है. इसका मतलब ये नहीं कि हम ना बोलें. एंड ऑल्सो फीलिंग दैट सेंस ऑफ सिस्टरहुड, ये बहुत जरूरी है नंदिनी. हम लोग एक सेंस ऑफ कंपटीशन से बाहर आए. हमारे कल्चर में कभी ये कंपटीशन नाम की ऐसे कोई चीज कभी थी नहीं जी, कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे या इतना फिरोशियसनेस से हम कंपटीशन करें कि हमें दूसरे की प्रगति या दूसरे का विकास हम स्वीकार नहीं पा रहे हैं. सो हमारे कल्चर में हमेशा ये रहा है दैट वुमेन हैव लिव्ड टुगेदर, सपोर्टेड ईच अदर. आप दूसरे भी इंडिजिनस कल्चर्स में देखिए, चाहे अफ्रीका है या दूसरे पेगन, जहाँ पर बहुत सारा नेचर को वर्शिप करती थी. विमेन इन द पास्ट हैव बीन स्ट्रॉन्गर क्योंकि वो एक साथ रहते थे, एक साथ हर चीज को करते थे, एक साथ एक टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस, एक फिलॉसफी में एक साथ जीते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे उसमें. क्या आपको नहीं लगता कि कंपटीशन की जो भावना है, क्या ये ह्यूमन नेचर है? ये इट्स एम्बेडेड इन अस एज ह्यूमंस? नो, आई डोंट बिलीव दैट इन माय जर्नी. जर्नी. लॉट ऑफ पीपल से दैट. नो, कि जेलसी तो ह्यूमन नेचर है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है. ये फीड किया गया हमारे सिस्टम में, ये हमारे को प्रोग्रामिंग डाली गई है. और आप 100, 150, 200 सालों तक के भी पहले देखिए, इस तरह का कंपटीशन ऐसा नहीं होता है कि आपको एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएं. कंपटीशन ऐसा होना चाहिए कि हेल्दी हो. हम ये स्पर्धा में जा रहे हैं लोग, मतलब अगर हम 200 साल पहले तक भी देखें, जब कोई मीडिया नहीं था, तो ऐसा नहीं कि स्पर्धा नहीं हुई होगी, बट इट वाज मोर ऑफ अ बॉडी बिल्डिंग और अ फिटनेस और अ म्यूजिकल, आर्टिस्टिक, कल्चरली ओरिएंटेड. तो उसमें एक दूसरे को, अच्छा उसने ये गाया है तो मैं ये राग गाता हूँ,
और It was अगर more गाया of- है कुछ अच्छा तो कुछ सीख लेते हैं हाँ ना? ये बात होती या थी। उनसे एक कदम बढ़ाते हैं आगे कि हे आई रियली लाइक योर वर्क, जो भी है, So, कैन आई बी एसोसिएटेड विद यू, yes, कैन आई yes. कोलैबोरेट, कैन आई लर्न, है ना? एक बट ईगो That है ना, feeling आना चाहिए ना। ईगो है ना, ये हाँ, मैं क्यों जाऊं उसके पास, मैं उससे बेटर बन के दिखाऊंगा, ये यू नो। अगर तो उसमें हम एक दूसरे को उन्होंने नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो हमको उसी स्मॉल माइंडेड थिंकिंग में हम उधर ही अटक के रह जाते हैं। देन वी डोंट ग्रो। राइट, सो वी हैव टू ग्रो एज अ सोसाइटी। और हमें एक समाज में बहुत बहुत लंबे लंबे विजन्स और बहुत आगे तक अगर भारत को लेके जाना है, या हमारे कोई भी फील्ड में हम उसी क्षेत्र में भी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सब एक साथ बढ़े। जी, देयर इज मच मोर ग्रोथ। राइट। कंपटीशन लोगों ने आपसे भी बहुत किया होगा, जी आई एम श्योर, है ना? बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग नंदिनी। आई थिंक लास्ट टाइम भी हमने शेयर किया था पिछले वाले पॉडकास्ट में कि फॉर मी इट वाज अ वेरी स्वीट ब्लेसिंग, क्योंकि मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ सिखाई थी। मेरे मामा जी होते थे, ही इज़ नो मोर, ही ऑल्सो पास्ड अवे वेरी सडनली, डॉक्टर राकेश सिन्हा, एंड ही हैड मेंटोर्ड मी। अदर देन हिम आई रिमेंबर हेमंत त्रिवेदी, जो डिज़ाइनर रहे मेरे गांव के, उन्होंने भी बोला था आप सभी का टेक केयर करिए, हम भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाके मित्रता करिए, सब सहेलियाँ बनाइए, आप उनको सपोर्ट करिए, आप उनको इनकरेज करिए। और अगर That सामने is वाला your- वैसा नहीं है, सामने वाला, यू कीप योर डिग्निटी, यू कीप योर फोकस ऑन दैट, ग्रीट द पर्सन। अगर आप होटल में रह रहे हैं तो जो डोरमैन है, या आपको बस में कोचेस में लेके जाया जाता है एक जगह से दूसरे, जो भी कोई कंपटीशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो ड्राइवर हैं या जो आपके साथ आपके उनकी टीम के जो लोग होते हैं जो जी। आपके साथ रहते हैं, आप उनसे अच्छे से व्यवहार में रहिए। सो दैट रिप्रेजेंट्स where you're coming from. ये आपने किया भी So बखूबी। that is where I say कि I may have been part of a competition, but I was never in that sense. वो जो competition वाली बात जब हम जो कह रहे हैं कि जो जैसे jealousy वाला जी, या दूसरे को छोटा दिखाना, ये ना मेरे में था। और क्योंकि मैंने किया नहीं किसी के साथ, so I invited a lot of goodwill. ओके, I had a lot of good friendships. मतलब लीडिंग अप टू द फाइनल डे ऑफ द पैजेंट मेरी इतनी मित्रता हो गई थी सारी लड़कियों के साथ मिस वर्ल्ड के टाइम पे, हाँ, कि वी वर ऑल्सो फीलिंग सो हैप्पी एंड जॉयफुल कि हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। हाँ। आप विश्वास मानिए अभी भी हम एक दूसरे के संपर्क में हैं। वी स्टिल हैव अ फेसबुक ग्रुप एंड अ व्हाट्सएप ग्रुप। हम अभी भी एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के शेयरिंग करते बहुत हैं। बड़ी बात कह रही हैं आप। हाँ, और सब लोग एक दूसरे को विश करते हैं, सबका बर्थडे सबको याद होता है, एक लिस्ट बनी हुई है, किसी का बर्थडे नहीं छूटता है। क्रिसमस पे विश करेंगे, दिवाली पे विश करेंगे, न्यू ईयर पे विश करेंगे। किसी की कंट्री में कोई इशू हो रहा है, अभी लेबनान में वॉर हो रही है, हाँ, मिडिल ईस्ट में इतना सारा अनरेस्ट है, तो एक दूसरे को पूछेंगे भाई आप ठीक हो, आपकी फैमिली ठीक है? तो वो बता रही हैं कि हम तो बॉम्ब सुन रहे हैं रात भर, मेरे बच्चे डरे हुए हैं। सो वी आर देयर फॉर ईच अदर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू, कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कभी उतने लेवल का नेगेटिविटी नहीं आई because you कंपटीशन में। became what you wanted to attracted. या सो आई ऑलवेज हैड दैट। सो मिस वेनेजुएला में से कह रही हैं कि तुम जीतो मिस वर्ल्ड, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी तुम जीतोगी तो। क्या बात है। लिटरली हम जैसे टॉप 20 तक आ गए हैं, शी हाँ। बैक स्टेज वो रोने लग गई। तो मैंने बोला मार्टिना प्लीज तुम्हारा मस्कारा खराब हो जाएगा, मेकअप बेकार हो जाएगा, मत रो। And she said, but I really want you to win. You know, there were so many of them, even on the day of the pageant. They said, हम देख रहे हैं, आपके सर पे ताज है, हमको दिख रहा है, मिस इंडिया तुम्हें ही जीतना है। क्या बात है। So that is a true victory. That is real bonding and respect, जो कि आज तक भी है। So आप जब देखोगे कॉन्टेस्ट का जो वीडियो है, उसमें सारी लड़कियां स्टेज पे आके मुझे हग कर रही हैं और इतना डांस कर रही हूँ, इतनी खुश हैं कि उनको लग रहा है द राइट गर्ल हैज वन हमारे बीच की, बट वी वांटेड दैट शी ट्रूली डिजर्व्ड इट। तो ये फीलिंग आनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन टू से कि कंपटीशन होए, बट एक तरह से जहाँ पे हम एक पार्ट ऑफ अ प्रोसेस है, एक जर्नी है लाइफ। I would really say that you're lucky. I am very fortunate that way. You know. I really feel blessed and fortunate. And also the girls, I must say कि हमारे में वो maturity रही, हमारे में वो ग्रेस रहा एक दूसरे के साथ। किसी का कुछ ड्रेस खराब हो गया, ला मैं उसको सिल देती हूँ। अच्छा उसकी जिप फट गई, अरे उसका गाउन नहीं है, चलो मेरे पास कोई गाउन है मैं दे देती हूँ। किसी के बाल वो बना नहीं पा रही, वो रोने लग गई, उसको अपने बालों का हेयर स्टाइल नहीं अच्छा लग रहा है,
तो कोई और बोलेगा अच्छा मैं अपना करके छोड़ के तुम्हारे पास आ जाती हूँ. So that feeling of kindness and So extending yourself nice. to the other, So very nice. important. That is what we experience. That is what So we have till today. I want to show you a picture and I want you to talk everything about this picture. Okay. Okay. हम ये this picture. या तो ये फोटो जो है आप दर्शकों को बाद में स्क्रीन पे आप दिखाएंगे. Yes. ये फोटो जो है वो जब मैं मिस वर्ल्ड जीत चुकी थी और उसके बाद जब मैं गई थी मिस इंडिया के लिए. सो दिसंबर में मैं मिस वर्ल्ड जीती एंड देन व्हेन आई कम बैक टू इंडिया तो मिस इंडिया जनवरी में होता है जनरली. तो तब क्योंकि वो मिलेनियल ईयर था 2000. Yes. तो उन्होंने फिर सभी को बुलाया, बोला सुष्मिता भी आएंगे, ऐश्वर्या भी आएंगे एंड डायना हेडन. इट वाज जस्ट द फोर ऑफ अस अंटिल देन. सो देन वी वर कॉल्ड ऑन द स्टेज एंड यू नो ऑनर्ड एंड सो ऑफ कोर्स फेमिना की टीम ने ये फोटो ली एंड वंडरफुल मेमोरीज ऑफ दैट टाइम. एंड नीडलेस टू से आई फेल्ट सो ऑनर्ड बीइंग पार्ट ऑफ दिस पिक्चर एट दैट टाइम कि आप उस एज पे एट 21 यू नो नंदिनी यू फील कि ना केवल मैंने भारत के लिए कुछ किया है, ठीक है मैंने कंपटीशन जीता होगा, बट दैट इज ऑलवेज विद द ग्रेस एंड द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर एल्डर्स, आवर गुरुज, आवर मेंटर्स, आवर ट्रेनर्स. बट देन टू बी विद द पीपल whom you have admired. Yeah. मतलब जब ऐश्वर्या और सुष्मिता जीते थे 94 में, आई मस्ट हैव बीन 15 और 16 या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ 5 साल पहले की बात है ना 99 से. एंड आई वाज 21 व्हेन आई वेंट फॉर मिस इंडिया. तो आई फेल्ट कि जिनसे मैं इंस्पायर हो रही थी उनके तो साथ वो ही- मैं उनके साथ मिल रही हूँ, आपने बैठ रही इनको हूँ. बताया ये बात? बिल्कुल बताई, हमारे इंटरेक्शंस हुए. बताइए ना कुछ क्या बातें हुई? I remember Sushmita cheering me on a lot. She said, "I'm so proud of you, and you know, तुमने इतना अच्छे से इंडिया को represent किया है, and we're giving you the best wishes आगे की तुम्हारी journey के लिए." Aishwarya also very dignified, very graceful, very classy. You know, जैसे वो बात करती हैं, आप उनके बात करने में ही आपको समझ में आता है कि this is the standard that we have to follow. Wow. So that's what I'm saying. वो एक inner beauty की मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, that has nothing to do with your fashion industry or how you look और आप कितने पतले हो और आपकी क्या size. It is absolutely the way that you carry yourself, the qualities that you embody. So Yeah. that we need the younger generation today to realize कि values क्या हैं. डायना हेडन ने मुझे इतना मोटिवेट किया था. उन्होंने मुझे कंपटीशन के पहले फोन पे कई बार मैं उनसे बात करती थी, मुझे ये बात का कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी, वहां जाके ये होगा, फिर मैं कैसे करूंगी. सो शी वुड टेल मी कि वहां जाके ऐसे ऐसे होगा, तो आपको ऐसे ऐसे इसको सिचुएशन को हैंडल करना है, या प्रेस के सामने अगर आपको मान लीजिए ऐसा कुछ पूछते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं बोलनी है. आप अगर किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप ज़रा केयरफुल होकर बात करिए. उनको कभी ना लगे कि आप अपनी भाषा में किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे होंगे. स्पेशली इफ यू नो आप मिस श्रीलंका या मिस नेपाल से मिल रहे हो, मिस बांग्लादेश के साथ हो, आप लोग तो हिंदी बोलोगे, तो you have to be very careful about those things. Yes. And so those small things she had really prepared me for. She became your personal mentor. Almost, you know, because she was somebody who was available to me on the phone, and I felt so comforted and I felt so held. Like ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, एक बड़ी दीदी है वो. बोल नहीं सकते, but she did give that. So this is what I say. जब हम मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आती है, ना कि आपने क्या कपड़े पहने, कितने लाइक्स हैं, सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब तो था ही नहीं हमारे टाइम पे. And that is what I'm trying to sort of bring to the awareness of the viewers and young girls. Ki that is important. Was there any piece of advice that Aishwarya gave you and Sushmita Singh? No, Aishwarya I had not met before the competitions. Okay. I had met her just after the competition, and very nice, very courteous. Yeah. Wonderful to meet her, and just to be in their presence, you feel. So if there is one trait, if I ask you that you would like to appreciate about Priyanka Chopra Jonas, what would that be? Nothing. Nothing? No. Because she's junior to me. She was the one taking advice from me. And Priyanka Chopra took advice from you? Yeah, because she was in the following year after me. Yes, yes. So then I personally feel that there were things that I have guided her towards. And her parents were sort of wanting to know from my parents. So I don't think that she's the right person for you to ask me at this moment. हाँ, किसी और का नाम आप लो तो मैं शायद बोल पाऊँ कि like I remember Juhi Chawla spoke to me after I won and I came back, and she spoke to me very kindly, and she said
you're so beautiful, you're so tall, and you carry yourself so well. Think about going international. सोचो तुमको पेरिस में जाके फैशन शोज करने हो, think like that. Yeah. And at that time I said, I don't think I can stay away too long from India. I'm so Bharatiya and I love my food and I like my people. And she said, हाँ बट काम के लिए आप अपने आप को ऐसा पोजीशन करिए इंटरनेशनल लेवल पे, आप ग्लोबल स्टेज पे हैं, आपके सामने तो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. So those are the kind of people that I'm talking about who don't look at you as competition. Yeah. They don't look at you as a threat. They look at you कि ये मेरे से जूनियर है, मैं 2-4 बातें इनको सिखाऊं या बता दूं जो मेरी जर्नी से एक्सपीरियंस से हुआ है. And that requires a lot of greatness, ना नंदिनी? Correct. That is what I'm saying. कि हमें जीवन में एक टाइटल या एक मिस इंडिया, एक मिस वर्ल्ड मिलने से ये चीज़ें नहीं होती हैं. आप आज भी जूही चावला जी का कार्य देखिए. She comes on stage with so much dignity. Yes. I've met her in person also. And I see she carries herself with so much grace. ऐसा नहीं कि उनके जीवन में challenges नहीं आए होंगे. And she's very senior to all of us. Yeah. She also worked very hard. उन्होंने भी डांस सीखा, फिल्म्स में काम किया. And वो भी गई मिस इंडिया बन के for the international pageant. So she's also been through the whole, Yeah. But उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है. नहीं छोड़ा. ना उन्होंने अपने, वो ग्राउंडेड है बहुत. She's very strong in her value system. Yeah. उन्होंने अभी भी मैंने सुना है कि environment के लिए या against 5G radiation, social cause कुछ ना कुछ करती रहती हैं उनके लिए. प्रमोट किया करना. Very, I know that she also trained in classical music. तो मुझे पता है कि वो गाती भी बहुत सुंदर हैं. शायद किसी फिल्म अवार्ड्स में उन्होंने कुछ गाया भी था स्टेज पे. तो ये सारी चीजें जो हमारी संस्कृति की, सभ्यता की, जो हमारे जो वैल्यूज हैं ना, इसको हमें लेके साथ में चलना. अब आपने कितनी खूबसूरती से शब्दों में पिरोए इतने सुंदर शब्द जूही चावला जी के लिए, इतने सालों के बाद भी you're being so respectful towards your senior. एंड अगर मैं बात करूं, ऐश्वर्या राय ने बहुत कुछ जीवन में अचीव किया है. बहुत नाम कमाया और बहुत बेहतरीन इंसान. बिल्कुल. लेकिन आज अगर देखें तो उनकी खुद के जीवन पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म बनाई जाती हैं. मैसिव क्रिटिसिज्म, बीट फॉर हर मैरिज, भी डिवोर्स का एक रूमर, ऐसा वेव दौड़ा कि ऐश्वर्या और अभिषेक अलग हो गए हैं, बट दैट वाज ऑल नॉनसेंस. एंड जिस तरह से हावी हो जाती है पूरी जनता, या इस तरह की टिप्पणियां मीडिया करती है, जनता करती है, आम जनता करती है, ऐसे इंसान को जिसने बहुत कुछ हासिल किया और इंडिया को वो ग्लोरी दिया है, प्रेस्टीज दिया है, लेकिन आप सबको जीरो कर देते हैं. कुछ समय के बाद, अरे कितनी मोटी लग रही है ऐश्वर्या राय, इतना heinous, इतना ज़्यादा they stoop low that they have started criticizing Aradhya also, saying that Aradhya is That's mentally terrible. sick. She is not a normal girl. She's abnormal. That's terrible. ये जो मीडिया को लेके सभी लोगों ने एक, sorry to use these harsh words, but एक sort of एक मार्केट बना दिया है. कौन किसको कितना नीचे गिरा सकता है. इट्स अ वेरी क्लियर वायलेशन ऑफ बाउंड्रीज. एक तो आप किसी के पर्सनल स्पेस में इतना ज्यादा दाने का आपका अधिकार ही नहीं है. बिल्कुल. चाहे वो पब्लिक फिगर हो, बिल्कुल, चाहे वो एक्सेसिबल हो, इट्स दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट अ लेडी जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना नाम कमाया है, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना ग्लोबली, इवन कैन्स में या हॉलीवुड में जो उन्होंने काम किया है, उन्होंने हमेशा, और उनके मुख से आज तक किसी के लिए कुछ बुरा नहीं निकला है. दैट इज द स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट शी हैज. मेरा सल्यूट है उनको, मेरा नमन है ऐसी स्त्री को जो कि किसी के लिए आज तक उन्होंने कुछ बुरा बोला नहीं है. और क्या उनको दुख नहीं होता होगा कि उनके अगेंस्ट इतना हार्श अटैक्स आते हैं, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो प्रिंट में हो. उनकी बच्ची जो इनोसेंट है, क्योंकि वो उनको पब्लिक के सामने लेकर आ रही है, इसका मतलब नहीं है कि आपका अधिकार हो गया उसके ऊपर टिप्पणी करने का. वो एक यंग गर्ल है, आप उसको इनकरेज करिए. इनफैक्ट मीडिया शुड प्रोटेक्ट हर. शी इज अ डॉटर, शी इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ दिस कंट्री. करेक्ट. और उनके फैमिली के, उनके लिनिएज के आगे के बहुत सारे उनके अचीवमेंट्स हैं. शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अमिताभ बच्चन. तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आप किसके अगेंस्ट बोल रहे हैं. दिस इज रिफ्लेक्टिंग वेरी पुअरली ऑन हाउ वी स्टार्टेड सीइंग यंग वुमेन एंड गर्ल्स. एक सोसाइटी में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है
कि पूरे नाखून और दांत निकाल के ना किसी को नोच लेना, और बार बार अटैक्स होते हैं उनपे। और इससे वी आर मिसयूजिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। यस, तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारा कल्चर। हम जो है एक, जैसे हम कह रहे हैं ना, हम स्टैंडर्ड ऐसा सेट करके दिखा रहे हैं अगली जनरेशन को कि इस तरह से बात करना इज नॉर्मल। हम उसको नॉर्मलाइज नहीं करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई फील वेरी स्ट्रांगली, and maybe it's also time for a lot of film people. I don't consider myself a film person Anymore. no, I never did. But you I were a very part of happily it. say कि I actually never, मेरी कोई फिल्म्स चली ही नहीं, मतलब मैं फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग ही नहीं करती हूँ। बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट थ्रू फिल्मी मंत्रा टुडे, फिल्म पीपल, पर्सनली आई फील जब तक कि बच्चे मेच्योर्ड नहीं हो जाए ना, थोड़ा सा उनको पब्लिक लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना थोड़ा बेटर है। बिकॉज बच्चों की साइकोलॉजी पे क्या असर आ रहा है ना, वो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल, वो अपने मन में रखेंगे। और खासकर की लड़कियां, अगर वो अंदर घुट घुट के कोई चीज को रख भी लेगी तो वो उसको एज एन अडल्ट बाद में शील हैव एन इमोशनल डिस्ट्रेसिंग और ट्रॉमेटिक, यू नो, शी कैन हैव एन अपहीवल, एंड इनोसेंस उनकी, यू नो, खत्म हो जाती है। शी इज सच अ स्वीट गर्ल, आई हैव सीन हर ऑन सम रील्स एंड सम यूट्यूब, एंड शी बिहेव्स सो इक्वली डिग्निफाइड जस्ट लाइक हर मदर। ये कल्चर है, क्योंकि वो साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो साउथ इंडिया में लड़कियों के ऊपर बहुत एक सॉर्ट ऑफ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप इस तरह से आपका आचरण होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात बताती हूँ, और भी जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो पार्टीज करते हैं, बिल्कुल, क्लब जाते हैं जी। और ड्रंक होकर गिरते पड़ते वो बाहर आते हैं, पैप्स उन्हें कैप्चर करती है, सर्जरीज कराते हैं, बोटॉक्स सर्जरीज कराते हैं इतनी छोटी उम्र में ही। यू नो, एक उनका फैशन सेंस अलग है, एक अलग तैयारी चलती है उन पर, बिल्कुल, काफी सारे क्रू होती है, जो हमने members होते हैं, आराध्या में नहीं जो देखी है। राधिया में नहीं है। जी, इसीलिए उससे कहीं ना कहीं, यू नो, ठीक है। वी ऑलवेज से जो, but she's still so young, so but raw. why is she being attacked just because she's daughter of Abhishek and Aishwarya is not fair. She's a child. उसको अपनी एज पे, अपनी जर्नी पे, अपने प्रोसेस से उसको बड़े होने दीजिए। हो सकता है कल को जाके वो भारत के लिए कुछ ऐसा काम करे जो हमने नहीं एक्सपेक्ट किया। उसका कुछ और टैलेंट हो, कुछ और वे में हो, वी डोंट नो दैट उसके भाग्य में वो क्या लेकर बिल्कुल, आएगी। शी इज वेरी टैलेंटेड। उनके एवरी चाइल्ड इज टैलेंटेड। हम उसको एक स्लॉट में ना डालें कि ये फिल्म एक्टर की बेटी है और इसको बस ऐसा आना चाहिए, डांसिंग और सिंगिंग और एक्टिंग। क्यों आना चाहिए? अगर आता भी हो तो क्यों वो करे? वो उसकी अपनी इच्छा है, अपनी स्वेच्छा से करेगी। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इवन विद मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड, कोई रूल बुक नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में ही आना है, या कोई रूल बुक नहीं है कि आपको ग्लैमर में ही रहना है। हमारी जो फर्स्ट मिस वर्ल्ड बनी थी, आपको पता है, रीटा फारिया, हाँ, रीटा फारिया 1966 में बनी थी। उन्होंने कभी कोई फिल्म मॉडलिंग रिलेटेड काम किया ही नहीं। वो मिस वर्ल्ड बनी, उन्होंने अपने मिस वर्ल्ड के 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने अपने पूरे जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी करी। उसके बाद उन्होंने शादी की और वो अपनी फैमिली का टेक केयर करती हैं। शी इवन लिव्स इन आयरलैंड, आई डोंट थिंक शी लिव्स इन इंडिया, शी मे बी विजिटिंग। बट आई एम सेइंग हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको ऑनर करें और अंडरस्टैंड करें। हर चीज को बैठ के एक कोई लेंस से क्रिटिसाइज करना जस्ट टू सेल योर न्यूज, जस्ट टू बिकम द नेक्स्ट हॉट ब्रेकिंग, यू नो, सिजलिंग टाइटल, और फिर वो उसके पीछे क्रेजी Well एक said. फ्रेंजी हो रहा है। ये काफी सारा तो प्रोपेगेंडा भी होता है, काफी सारा ये पेड भी होता है, आई अंडरस्टैंड, एंड इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। वी डोंट नीड इट, वी रियली हैव लार्जर थिंग्स टू टॉक अबाउट। मतलब हमारे समाज में और भी कई इश्यूज हैं, बिल्कुल, उनके बारे में भी बात किया जा सकता है। You know, whether it's cruelty to animals, whether it's children, whether it's पर यहाँ मसाला नहीं है ना, environment. मसाला नहीं है। नहीं, TRP मसाला कैसे बनाया मिलेगा? जा सकता है, TRP उसमें कैसे मिलेगा? मिलेगा ना। अभी I'll give you हम पॉलिटिशियंस को एक्सपोज करेंगे, बहुत सारा टीआरपी मिल सकता है। किसमें इतनी दम है, इतना दम है? दम नहीं है ना, तब तो ये सारे काम कर रहे हैं। यही तो हम कह रहे हैं आपसे। जब अभी वॉर शुरू हुआ था इंडिया पाकिस्तान के पाकिस्तान बीच में, आपने न्यूज देखा था, न्यूज चैनल? सम, बहुत ज्यादा मैं उसको नहीं समझती हूँ फॉलो करने के लिए, क्योंकि मुझे देखते सारी समझ में आ जाता है कि ये किस तरह से इसको कलर किया जा रहा है, टू अगेन टू सेंसेशनलाइज इट। और फिर मुझे लगता है कि ठीक है, रहने दो, आपकी बात है, आप अपने ऑल दीज न्यूज चैनल्स दे बिकेम दिस जोकर्स, बिकॉज़ हो कुछ रहा है, बोल कुछ रहे हैं, कोई न्यूज चैनल कुछ बोल रहा है,
कोई कुछ बोल रहा है, हमने सबसे पहले, इंडिया ने बॉम्ब गिरा दिया, इंडिया ने कराची को तबाह कर दिया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडिया में तो हमें पैनिक अटैक्स आ रहे कि अरे इस लेवल पे वॉर अब चल चुका है। तो आप देखिए कि जरा बहुत पैसे कमाए न्यूज चैनल, न्यूज टाइम। तो सेम हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत केस। वो तो yes, 3 महीने तक पूरे न्यूज चैनल देश के सारे ग्रहण चिंतन करने वाले yeah, विषयों को छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत के केस को बुरी तरह से निचोड़ कर पैसा कमाया। तो it's very tragic. उनका इस पे कोई उनका आवाज भी नहीं उठाता, ना कोई लॉ बना हुआ है। बस एक ही लॉ है कि जो है अपना मीडिया एक स्तंभ है, पिलर है एक हमारा, और राइट टू स्पीच है। तो उसके अवज पे लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, बोल करते रहे हैं, हैं। एंड इट्स जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप। इसमें 2-3 चीजें हैं ना नंदिनी। एक तो हमें भी एज व्यूइंग पब्लिक, पार्ट ऑफ द व्यूइंग पब्लिक ऑल्सो, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट। अगर हम कंज्यूम ही नहीं करें तो वो सामने वाला बना ही नहीं पाएगा, उसको वो फॉलोअर्स, लाइक्स या सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे ही नहीं। तो एक तो ये हो जाती है कि द पावर इज एक्चुअली विद पीपल, ये हम रियलाइज करें। दूसरी चीज इसमें आती है कि कितना कुछ पेड है और कितना कुछ फियर इंड्यूसिंग है और कितना कुछ हमें मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है, राइट? सो these media houses have misused their powers a lot. जैसे हम कह रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच, पावर ऑफ स्पीच को बहुत मिसयूज किया गया। आप उसी चीज को लेके आप बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते थे यंगर जनरेशन को, आप साथ में उठा सकते थे उनको, but they're choosing not to do it. So we want to question who is behind these media houses then. उनका एजेंडा क्या है? क्या वो भारत को तोड़ना चाहते हैं? क्या वो हमें अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से दूर करना चाहते हैं? तो फिर आप अपने आप को तो कह नहीं सकते कि आप न्यूज चैनल है। फिर आप इफ यू आर पेड एंड यू आर डूइंग इट एज आई सेड एज अ प्रोपेगेंडा अगर चल रहा है, तो फिर पब्लिक को बहुत सतर्क होना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, और हमें उनको आगे बढ़ावा देना भी चाहिए या नहीं। सबको जनता के हाथ में है, जनता अगर के हाथ में भी एकजुट है, हो जाए। और जनता के पास क्या वो अंडरस्टैंडिंग है कि सही वही। क्या और गलत। तो ये थोड़ा सा विवेक आने के लिए, ये थोड़ा सा चैतन्य जागने के लिए, बिल्कुल, वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी सिर्फ थोड़ा शांत रहने से भी हमें अंदर से पता चलता है कि सत्य क्या है और क्या नहीं है। इफ आई हैव टू सिट एंड टॉक टू यू टुडे, अगर मैं कुछ ऐसी बात करने लग जाऊं ना, तो आपको भी थोड़ा सेंस तो आ जाएगा कि ये सच बोल रही हैं या झूठ बोल रही हैं, या थोड़ा सा कहानी में मुझे घुमा रही हैं बातों में, इतनी तो समझ आ ही जाती है। सो इट्स अप टू अस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, हमने मीडिया के बारे में बात कर ली, आपके ब्यूटी पेजेंट वर्ल्ड के बारे में बात कर ली। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फिल्म एंड बॉलीवुड। To me, honestly, it's a non-existent subject. Why do you always say that? No, because Nandini, I'm a very मेरा जो personality है, मेरा जो process है thinking का life का is very different to the way that the film industry functions. So I say, fortunately for me, it didn't work out. Why do I say fortunately? Because maybe I'm not the kind of person who's going to, fit into that structure. What is the structure? The structure is that I felt, ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन में रहा और मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा आया, इतना इंटरनेशनल एक टाइटल जीतने के बाद भारत में इतने लेवल पे मान सम्मान मिलने के बाद मुझे अगर फिल्म सेट पे बोला जाएगा गालियां देते हुए कि तुमको डांस करने नहीं आता है या तुम्हारे को पता नहीं कि कैमरा कैसे फेस किया जाए, इट्स अ डेनिग्रेशन, राइट? इट्स एन इंटेंशनल डेनिग्रेशन, है ना? तो उसमें दिखाया जा रहा है कि तुम मत समझो तुम मिस वर्ल्ड हो, तुमको कुछ नहीं आता है करने के लिए, right? So what yeah, absolutely, that was my first film, first set, first day, first Pyasa, shot 2002. experience, absolutely. So at that time I thought कि चलो मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है ये सब, मुझे सीखना है, चलो कोई डांट लगा रहा है थोड़ा सीखना पड़ेगा। किसने डांट लगाई थी? सबने डांट लगाई थी, डायरेक्टर है, डांस डायरेक्टर, सबने। बट द पॉइंट इज, अब वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, वी आर टॉकिंग अबाउट 2001, वी आर इन 2025, 24 साल बाद, मतलब लेकिन किसी भी साल में ये चीज नहीं होनी चाहिए, किसी भी गया। साल में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी होना के साथ ही नहीं चाहिए, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नंदिनी, दैट्स व्हाट हैपेंस unless you come from a very privileged background. अरे but you did India proud. That's what I felt, that's what I was convinced. So but होता क्या है, कई लोगों का
वही वो होता है. So as I said, it's not that I didn't meet nice people. I met a lot of wonderful directors and people who are from great production houses, you know, the big names, whosoever, जो भी आप ले लीजिए. ऐसा नहीं कि मैं उनसे मिली नहीं, बट इट जस्ट डिडंट हैपन. ना उन्होंने कोई फिल्म ऑफर करी, ना मैं उनके पास जब कभी गई कि भैया आप फिल्म बनाने जा रहे हो, आई लाइक टू ऑडिशन फॉर इट. तो वो बस वर्कआउट ही नहीं हुआ. सो इट आई फील इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग वेयर what I was kind of aiming for in life is to do good films and to be with good people and to contribute to good cinema. वो उस तरह की शायद उस समय मेरे करियर के बिगिनिंग में उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उन लोगों से हैंडल नहीं हो पा रही थी. ऐसे ही बोल सकते हैं. बिकॉज आई नॉट द टाइप हु आई मीन आई बी हैप्पी टू टेक इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस एंड आप डांटो भी मुझे, मैं सीखने के लिए तो रेडी हूँ. अभी भी आज भी मैं ऐसे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ. आई नेवर से आई हैव अचीव्ड एनीथिंग और आई एम सो ग्रेट. आई ऑलवेज से आई एम ऑलवेज लर्निंग. मैं आज भी कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हूँ, अभ्यास कर रही हूँ. बट देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग समबडी टू डिलीवर दैट. क्योंकि आप किसी को इतना बुरा बोल के और फिर एक्सपेक्ट करोगे कि फेस के एक्सप्रेशंस अच्छे आने वाले हैं कैमरा पे, तो भैया मेरे से तो नहीं होने वाला. मैं वो प्यासा फिल्म देखना चाहती हूँ. I want to see your expression throughout the film. It was very tough for me. And as I'm saying, first day, first film, first schedule, first song ever in front of the camera, first time dancing, and first time we were doing it in Manali की ठंड में. मतलब मेरे पैरों के नीचे बर्फ थी. So I was having a hard time in my life. It was not going well. And then I realized slowly जब जैसे वो फिल्म खत्म होने में भी बहुत डिफिकल्टी आई है. क्या क्या डिफिकल्टी आई? कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, फंड्स नहीं थे, प्रोड्यूसर कर नहीं पा रहा था, बहुत सारे उसमें इश्यूज आ रहे थे शेड्यूल में. आफ्ताब शिवदासनी was your आफ्ताब was my co-star. co-star. Yeah, he was kind. He used to sometimes help me. देख ये नहीं हो रहा, ऐसे कर ले, ये देख ऐसे नहीं हो रहा, इसको थोड़ा ऐसे ट्राई कर ले. He would kind of give me some tips. But of course he had faced the camera since he's a very young child star. मतलब उनके लिए तो ये बहुत नॉर्मल सा था. उनको तो आप सुबह नींद से उठा लो 3 बजे, वो तो he'll face the camera. आफ्ताब ऐसे कहते नहीं थे कि I really don't like the way they are treating you, पर मैं कुछ कह नहीं सकता He because may I'm a have part. said it, maybe not to my face, but he was very kind. He was very supportive. ऐसे I have no hard feelings, nothing against him. And in fact, couple of years later, we met briefly somewhere, and we met very nicely. We didn't stay in touch after that project, but ठीक है, this is life. These are the journeys, and sometimes some lessons of life कुछ ना बहुत कड़वे हमारे जीवन के chapters होते हैं, जिनको वो घूट पीना होता है. तो वो आपको सीखना लगा, होता है. आपको लगा कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी ने हमला चैलेंज किया हो रही है. थी, बहुत ज्यादा हो रही थी, टू अ पॉइंट वेयर आई फेल्ट कि प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं हो आ रहा है सामने से. एंड यू नो, so I was very content going back to my practices of yoga and classical music Yeah. and being with my, as I said, मेरे को कुछ सीखने की हमेशा चाह रहती है. So अच्छा, जिस टाइम ये मूवी रिलीज हुई थी ना, उस हम्म. टाइम पे कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कुछ इस तरह की 2000, फिल्में आ रही थी. या अराउंड दिस some टाइम मुझसे दोस्ती 2001. करोगी एंड तेरे नाम 2023 में रिलीज. तो इस तरह की कुछ फिल्में बहुत True. अच्छी आ रही थी. हम्म. आपको नहीं लगता कि आपसे स्क्रिप्ट, आपने गलत फिल्म जो है लॉन्चिंग के हिसाब से आपने गलत फिल्म पकड़ ली? हो सकता है, बट वो जब आपके सामने जब वो प्रपोजल आता है तो वो उस तरह से नहीं बताया जाता है कि दे आर न्यू, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर. ठीक है, बट जो स्टोरी लाइन होती है, यू लुक एट दैट एज वेल. डेफिनेटली आई थॉट ऐसे इंट्यूशन तो न्यू आई है. होगी फर्स्ट डे शूट पे उतनी जाके. शायद नहीं भी आई, बट आई फेल्ट कि द पीपल अराउंड मी कुड हैव आल्सो गाइडेड मी बेटर. आई वाज सो न्यू, आई वाज सो a novice मिसगाइडेड. in. किसी ने आपको बोला ये फिल्म तुम साइन कर ले या नहीं कर ले? आपने ऑफ कोर्स शेयर किया होगा अपने दोस्तों से, दे आई हैव गॉट दिस फिल्म. हाँ, बट तो उस टाइम पे जैसे आपके आसपास जो लोग होते हैं, दे कॉल देमसेल्व्स फिल्मी पीपल. वी हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 20 एंड years. अच्छा मैं नाम नहीं पूछूंगी, सेक्रेटरीज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं आपको कर लेना चाहिए. जिन्होंने आपको गाइड किया कि वो पॉपुलर है, थे पॉपुलर थे, और हैं भी अभी तक. अभी नहीं है. अच्छा. बेशक जिसने बुरा किया उसका कुछ नहीं हुआ है. आई से दिस वेरी ब्लंटली कि जिन ने मुझे मिसगाइड किया हो या जिस किसी ने चाहा हो कि इसका बुरा हो, आज वो कहीं पर भी नहीं है सीन में. उनका नामो निशान मिटा दिया है. क्या बात है. हाँ, कर्मा डज हिट बैक ना. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं है जीवन में. मैं किसी का बुरा कर ही नहीं सकती हूँ. तो मेरे साथ जब कोई इंटेंशनली चाह रहा है, जैसे मैंने कहा, डेनिग्रेट करने के लिए, बिल्कुल. इट्स नॉट गोना गो वेल फॉर देम. तो बॉलीवुड में आपकी फ्रेंडशिप कैसी थी
फ्रेंड्स हैं आपके बॉलीवुड में? फ्रेंड्स तो नहीं होते हैं कभी बॉलीवुड में. ऐसा क्यों कहती नहीं हैं नहीं, फ्रेंड्स नहीं होते. बॉलीवुड इज योर प्रोफेशनल वर्क स्पेस. यू कैन हैव गुड sort of collaborations, you can have good partnerships with work people, work related, but इतनी मेरी कभी किसी से ना मित्रता रही ना ऐसा कोई अभी तक मेरे कोई संपर्क में है. तो जैसे करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा फ्रेंड्स हैं, नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स, I never आपके had. कोई ऐसे BFFs नहीं हुए? मिस वर्ल्ड वाला जो मेरा बहुत अच्छा सुंदर अनुभव रहा was वो मुझे यहाँ मिला नहीं, वो हुआ नहीं. एंड दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली एज आई सेड. यहाँ पर कुछ कुछ लाइफ के ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि कड़वे होते हैं, वो आपको पी लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कड़वा नहीं पियोगे तो कुछ और कड़वा आएगा. बिल्कुल. जीवन में वो जैसे आप कह रहे हो ना, इट गेट्स हिट, समथिंग कम्स एंड हिट्स यू, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट. यू जस्ट हैव टू से अच्छा ये नहीं वर्क कर रहा है. आई एम नॉट मेंट टू डू दीज काइंड ऑफ फिल्म्स. आई डोंट वांट टू डू दीज अदर फिल्म्स. देन तो इट्स टाइम टू टेक अ स्टेप आपने बैक. सबसे पहले जो है साउथ में एक आपने हाँ. सॉन्ग किया था, युक्ता मुखी युक्ता, बहुत अच्छा गाना है वो, जी आई जी थिंक, जी. एंड यू लुक सो गॉर्जियस एंड ग्लैमरस, यू नो. उसके बाद ये प्यासा आती है, फ्लॉप हो जाती है. उसके बाद आपने तकरीबन 2-4 मूवी हुई, लेकिन बीच में मैंने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से कुछ मूवी आप कर नहीं पाई. That's not true, Randini. I just had a little fall and I had fractured my left hand. अच्छा. Actually, my left wrist. But उसके बाद I was doing all my other events very. Back in 2006, 2002 से. No, 2002 में ये मेरा just it was a wrist fracture and I recovered like everybody recovers 1-2 महीने में. Really? But thank you for saying this, because on the internet, everywhere, I could see the articles while I was researching that, you know, she met with this tragic car accident. Never. So I really wanted to ask, but last time I couldn't ask you this question. Fortunately, I've never met with a car accident. Thank you for clearing that out. And I'm so glad you've told me कि कितना misreporting हुआ पड़ा है. अच्छा, उसका गुड साइड ये है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया है 20 सालों में, और उसके बाद भी लोग अगर कुछ मेरे बारे में लिख रहे हैं then they must think I'm very important. और काम अपनी चॉइस से आपने छोड़ा है. काम मैंने अपनी चॉइस से छोड़ा है बिकॉज आई फेल्ट कि आई एम मेंट टू डू समथिंग एल्स. मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो बहुत अलग है. मैंने जब मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के लिए भी जब मैं जा रही थी तो मेरे लाइफ का एक ही दृष्टिकोण रहा है, और ये आप अगर आप पहले के आर्टिकल्स या कोई इंटरव्यूज निकालें उसमें भी आपको ज़रूर मिलेगा. व्हेन आई वाज जस्ट 20 और 21, आई हैव ऑलवेज सेड कि मुझे महिलाओं के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, एजुकेशन की फील्ड में करना है, हेल्थ रिलेटेड जो है इश्यूज जो आते हैं महिलाओं बच्चों को. सो आई हैव स्पेंट द लास्ट 10-15 ईयर्स उसमें अभ्यास करना, गर्भ संस्कार, टीचर ट्रेनिंग मैंने ली है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में. यंग बच्चों के लिए स्पेशलाइजेशन किया है कि जिनको लर्निंग डिफ़िकल्टीज आती हैं या जिसको आजकल एक लेबल दिया जाता है, ऑटिज्म है, ADHD है, क्या है नहीं कुछ. तो दोज आर द एरियाज दैट आई हैव फोकस्ड ऑन. तो मेरे लाइफ का जो धर्म है वो बहुत अलग है. एंड दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज. दैट इज़ व्हाई आई सेड कि अच्छा अगर मुझे ये सब कुछ करना है तो आई एक्चुअली वांटेड टू बी पार्ट ऑफ अ larger movements. I wanted to be part of a cinema that influences people positively. That where women are portrayed with a lot of respect and dignity. Strong roles, strong हमारी, जैसे कि आज हम कह सकते हैं कि कंगना रनौत ने झांसी की रानी का रोल प्ले किया हो. So that is the kind of cinema that you know at that time I felt I deserved to carry on screen with my personality. जो कि नहीं हो रहा था. So that's why I very sweetly accepted. I said ये मेरे लिए नहीं है. लेकिन आपने ट्राई तकरीबन 6-7 सालों तक आप सक्रिय रही, ट्राई कर रही थी. जी. रीजनल सिनेमा भी आप कर रही थी. यू वांटेड टू गिव इट योर गो. आई थिंक यू रियली लव सिनेमा. and that's the reason that I even went and trained myself to be a film director. I said चलो हम एक्ट नहीं कर पा रहे, हम वैसी फिल्म बना तो सकते हैं, लिख सकते हैं. You can always be part of the creative process. But फिर then I got married and I had a baby and then motherhood took over. But I wanted to share with you कि talk show was a very interesting possibility for me at the time. That was something that I had grown up. मैं कई बार बोलती भी थी, ओपरा विनफ्री मेरी रोल मॉडल रही हैं. I've been very inspired and वो मैं करना चाहूँगी. But फिर वो भी कोई channel didn't take it forward. And so I'll say that's very, you know, it's perfectly fine क्योंकि लाइफ में आपकी जर्नी, आपका ट्रूथ जो है आप उस पे चलें, आप उस पे अटल रहें. That is what you do what you believe in. Don't do what you don't believe in. तो ये मैंने हमेशा लोगों से कहा है. जब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाती थी या इवेंट्स भी करती थी तो आई वुड ऑलवेज से आप अपने में विश्वास रखिए.
आपके जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे, आप अपने में विश्वास रखिए। तो जब मैं ही वो चीज को बिलीव करती हूँ, आई हैव टू वॉक द पाथ, आई कांट डू समथिंग विच आई एम नॉट एनी मोर रेजोनेटिंग विद, मतलब वो मेरे से अलाइनमेंट में नहीं हो रहा है, तो उसको ग्रेसफुली स्टेप बैक करना और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना इज द राइट थिंग टू डू। क्या किसी ने आपके साथ पॉलिटिक्स प्ले किया? बहुत सारा बॉलीवुड में, बॉलीवुड में, अदरवाइज भी लाइफ में जनरली बहुत सारी गेम्स हुई, बहुत सारे लोगों ने नीचे निकाला गया, फिल्मों में साइन ही नहीं किया गया, बोला गया कि हम ये फिल्म में आपको लेंगे और फिर अगले दिन हम पढ़ रहे हैं पेपर में किसी और को ले लिया है। They didn't have the dignity to call you at least. No, 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 none of that. And I feel शायद अगर मैं साउथ में करती तो वो ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता, बिकॉज साउथ इज वेरी प्रोफेशनल एंड दे ट्रीट द विमेन विद मच मोर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो वो जो एक तमिल सॉन्ग जिसकी आप मेंशन कर रहे थे, उसमें मेरा इतना अच्छा अनुभव रहा, यू नो एवरीथिंग वाज डन सो परफेक्टली, टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, टाइम पे आपको बता रहे हैं, एंड टाइम पे आपका जो है फिनिश कर रहे हैं। अगर लेट होने वाला है दिल गिव यू इनफ रेस्ट, दिल कम टेक केयर ऑफ यू, आपका फूड ठीक है, आपको लैंग्वेज इशू तो नहीं आ रहा है, यू नो को स्टार इज वेरी बीइंग वेरी कंफर्टेबल विद यू, जस्ट एवरीथिंग वाज। तो वहां क्यों नहीं आपने फिर वापस से अपनी शुरुआत की? बस फिर वो ऐसा कुछ यहाँ बॉलीवुड ने इतना तोड़ दिया आपको, इतना झल्ला दिया कि अब वहां जाने की भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, वैसा नहीं था, झल्ला कोई नहीं सकता मुझे, आई एम टू स्ट्रॉन्ग फॉर इट, आई कैरी देवी शक्ति विद इन मी, बट आई जस्ट रीच्ड अ पॉइंट विद इन मी वेयर आई सेड कि जो चीजें मुझे करने में खुशी मिलती है मैं वो करूंगी। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मेरा आध्यात्मिक बैकग्राउंड रहा जी, तो मुझे पता है कि जो आनंद की प्राप्ति मुझे अपने गुरु के आश्रम में सेवा करते हुए मिली है, वो मुझे इन बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती। ये रियलाइजेशन थोड़ा आई हैव ऑलवेज हैड दैट नोइंग विद इन मी। तो वो कन्विक्शन जो है वो मेरी लाइफ को ड्राइव करता है कि वो इंसान या वो चीज मुझे वो खुशी नहीं दे सकती जो कि मुझे अंदर से मिल सकती है। और जब सिद्धों ने, संतों ने ये बात लिखी है और बोली है कि ये सच्चिदानंद आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, you can't play with that truth. Right. You have to believe that if ancestors have lived by that, then that is the ultimate principle of life. So for me it was absolutely normal. मतलब ये देना है, ये छोड़ना है, ठीक है, डिटैचमेंट हो जाती है आपकी, बहुत ईजफुली आप उसको कह सकते हो कि मुझे इसके ऊपर कोई चीज़ का डिज़ायर नहीं है। Not because I didn't get it, but because I know that that's not what's going to drive my happiness. मेरे अंतर से जो आनंद है वो मेरा स्वाभिमान भी है और वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे मैंने कहा, जो संतों ने बोला है। So for me that was very clear. So आप इतनी प्योर सोल हैं, आपकी बातें मतलब इतनी सेक्रेड है, और एक तरफ बॉलीवुड इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि आप बहुत कुछ अच्छा सोच के गई, बट वहाँ वो उतनी अच्छाई नहीं आपको मिली। अच्छा, उस टाइम पे कास्टिंग काउच का एक चलन चला था, तो क्या आप भी इसके चपेट में आई? क्या किसी ने, डायरेक्टर ने बोला कि तुम्हें बहुत बड़ा स्टार में बनाऊंगा, लेकिन यू नो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज? नहीं, इतनी तो हिम्मत किसी की नहीं हुई बोलने की कि मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगा, क्योंकि आई वाज ऑलरेडी अ स्टार। बट मतलब ब्यूटी पेजेंट से कोई आती है, बट पीपल डू ट्राई, बिकॉज ये चलन है जैसे आप बोल रहे हो ना। उस वक्त तो शुरू हुआ था कास्टिंग काउच का एक पूरा मामला जो है। आई थिंक ये तो चलता ही है, इट्स पार्ट ऑफ हाउ थिंग्स मूव, एंड लेट्स नॉट मिन्स आवर वर्ड्स, मतलब इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है, इसको जैसे सीधा है वैसा बोला जाए। बट मेरे कहने का अर्थ है कि मेरे साथ ऐसा कभी कोई इतनी सिचुएशन आई नहीं कि जहाँ पर कि आई वुड फॉल अ प्रे टू इट। आई एम टू स्ट्रॉन्ग इन माई माइंड टू नो कि कोई मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, एंड आई एम गोइंग टू देन बिकम अ विक्टिम टू दोज थिंग्स। एटलीस्ट यू वर अवेयर। I was aware, yes, but also I had the courage to stand up and just walk away from it. I've walked away from too many things which have challenged my dignity and self-respect in life. So for me, that is very important. And it has nothing to do with ego, and it has nothing to do with trying, showing or proving a point. It's just that's not who I am. जिसको सूट कर रहा है वो अपने decisions लेंगे life के, उनकी choices हैं, फिर उसके consequences फिर उनको झेलने हैं, how they live with themselves. Yes. But my conscience has to allow me. During your phase in film industry, did you ever feel depressed? No, never depressed. When your films were not doing well, no, when you were dejected maybe, upset also,
और टू एन एक्सटेंट इवन फ्रस्ट्रेटेड कि ये अच्छा प्रोजेक्ट था, ये मैं करना चाहती थी एंड ये नहीं हुआ, तो वो तो नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग्स आते हैं, बट दैट्स वेरी मोमेंटरी ना नंदिनी, यू नो कि ये ठीक है नहीं हुआ, समथिंग एल्स, बिग डील। मेरे जीवन में और बहुत कुछ है करने के लिए, हाँ, क्योंकि और मैं इतने तक सीमित नहीं हूँ, तो वो इट डिडंट हर्ट मी और इट डिडंट हिट मी सो बैडली। इट वाज, एज आई सेड, आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एक्चुअली कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करती हूँ, ना मैं बिलोंग करना चाहती हूँ, और ना मेरे साथ ये वर्कआउट हुआ। आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट बिकॉज इट अलाउड मी टू सी कि मुझे और करना क्या the है, other beautiful side और of मैं life. जो कह रही हूँ एज अ रोल मॉडल टू अदर वुमेन, यंग लड़कियों से, भारत की यंग पीढ़ी से, जब मैं कह रही हूँ कि आप जीवन में कुछ करिए, विमेन हैव पावर, विमेन हैव स्ट्रेंथ, विमेन हैव डिग्निटी, हम जननी हैं, हम चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, तो आई बिलीव इन इट, सो आई हैव टू वॉक दैट पाथ, एज आई सेड, आई हैव टू लिव दैट ट्रूथ। नहीं तो वो, हाउ कैन आई से टू यंग गर्ल्स कि तुम ये करो, बट मैं तो कुछ और ही कर रही हूँ, बट मैं तुमको ये बोल रही हूँ करने के लिए, लेकिन मैं कर कुछ और रही हूँ, तुमको बोल कुछ और रही हूँ, मतलब हो नहीं सकता ना। बॉलीवुड में रहने के लिए मैंने बहुत आर्टिस्ट ने कहा है कि फेक बनना पड़ता है, नकली बनना पड़ता है। बनना ही पड़ता है, क्यों नहीं बनना पड़ता है, इट्स अ प्रोफेशन, यू हैव टू जस्ट डू योर बिजनेस, योर जॉब, एंड यू नो यू हैव टू बी दैट पर्सन, एंड दैट्स फाइन। लॉबी, लॉबिंग आप बोल रहे हो जैसे, हाँ करते हैं लॉबी होंगे का लोग, पार्ट बनना है, पार्टी करनी है, हाँ हाँ, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, ये तो सब मुझे भी नेटवर्किंग बहुत करो। बोला गया, तुमको अपने आप को पेज 3 पे आना चाहिए, इस तरह से मार्केटिंग करो, पीआर एजेंसी हायर करो, अपने बारे में ब्रांडिंग कराओ, एंड व्हाट नॉट, एज यू सेड, पार्टिंग करो, ये डायरेक्टर्स को जाके मिलो, उसको जाके प्रोडक्शन हाउस में जाके अपना ऑडिशन दो, ना ऐसे ठीक है, उतना सब थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट फिर देन व्हाट, then what? Is that something that defines me, and is that the ultimate goal of my life? And is that the purpose for which I started my journey? No. Right. No. So according to you, what is the darkest thing in Bollywood that's going on currently, and you think that it should change for its betterment? Oh, too many things. उसके लिए शायद हमें अलग से एक एपिसोड करना पड़ेगा, which will be just about the Bollywood and their dark truths. इतने कुछ है क्या? हाँ, बहुत कुछ है, एंड उसको किस तरह से बोला जाए जहाँ पर कि आपका चैनल शट डाउन नहीं हो जाए। It's Seems like there's a lot that you have to unravel about Bollywood. Filmy Mantra will have to think कि वो हमको दिखाना है क्या? Are we standing and saying this? इतना कहना ही बहुत काफी था आपका। Absolutely, definitely. There's no two ways about it. पर ऊपर से तो ये इतना अच्छा दिखता है ना। तो ग्लैमरस दिखेगा ना, तब तो लोग आएंगे, तब तो वो बिकेगा ना, क्यों नहीं? So that's why I say you have to know your truth. You have to know what you stand for. So एक चीज नहीं जिसको सुधारना चाहिए, बहुत चीजें वो तो सुधर नहीं पाएंगी। बट फिल्मों के बारे में क्या ख्याल है अभी जो फिल्में आ रही हैं जिस तरह की? I hardly watch any films. You don't watch Bollywood? I don't watch any Bollywood movies. The only movies I watch is Marathi cinema. क्योंकि मेरा बेटा और मैं, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत बड़े फैंस हैं, भक्त हैं उनके, तो हम वो मराठी सिनेमा देखते हैं। हम लोग हिंदी सिनेमा देखते ही नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक पावर मिलती ना और आपको यूटिलाइज करना होता है कि उस पावर को कैसे चैनलाइज करें, मुझे लगता है आप ये करती कि बॉलीवुड वाज नेवर एसोसिएटेड विद मी, इसको एकदम हटा दो। नहीं, बॉलीवुड में बहुत अच्छे सिनेमा बना है, ऐसा क्यों नहीं है? डेफिनेटली मदर इंडिया, I have not, or even recently also, we've seen a lot of good cinema happen. Really like Chava. I personally felt it was not up to that mark. जो मराठी सिनेमाज में जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज की बनी है, आप उसको मैच ही नहीं कर सकते। No, not for me. Chava didn't do it, honestly. But I'm glad Chava happened to India and Chava happened. It happened. Somebody thought about it. क्योंकि लोगों के अंदर वो जागरूकता आई और महाराज के लिए वो, उनके लिए वो रिस्पेक्ट पैदा हुई यंगर जनरेशन में। A lot of people who didn't know कि उनकी किस तरह से उनकी जो है उनको मारा गया, या जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन का एक समर्पण किया है, तो ये तो डेफिनेटली तो उनके लिए श्रद्धांजलि है। It has less to be said about the makers, but more the efforts of the people who did it and who made it happen. Definitely, hats off to them. Yes, it's a subject which otherwise nobody would have touched. Yeah. I want to ask you from you now. We are moving on to the last topic. Yes, please. I know you have to go somewhere. थोड़ा सा समय को ध्यान देते हुए. What is love according to you?
love for me and according to me has always been divine love. जब तक आप भगवान के लिए वो लव एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, you don't know what is love. You have to have that experience and that cannot be put in words. वो जो है किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से वो आपको नहीं मिल सकता है. उसमें आप सीखते हैं कि मैं स्वयं को भी मैं कैसे प्यार करूं, स्वयं के लिए एक्सेप्टेंस होना और स्वयं के लिए उतना, जिसको इंग्लिश में जो शब्द हैं कि सेल्फ वर्थ होना, कि लव के नाम पे क्या क्या कुछ हम टॉलरेट कर रहे हैं या लव के नाम पे हम क्या कुछ सोचते हैं हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं. और लव फॉर मी टुडे आई फील is healthy and can only work if you have healthy, strong boundaries. You can't have love without respect. So respect is very important in love. Yeah, absolutely. There's no two ways about it. कोई भी प्रकार का हो, चाहे एक पेरेंट और चाइल्ड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, कोई भी हो, ब्रदर सिस्टर का हो, any kind of love, it has to be with respect and boundaries. आपको भी प्यार हुआ था, क्या जल्दीबाजी कर दी शादी करने में आपने? क्या खुद को वक्त नहीं दिया? नहीं नंदिनी, आई थिंक दैट इज अ सब्जेक्ट जो उस पर लीस्ट कमेंट किया जाए तो बेहतर है. बिकॉज ईदर सो इट वाज, आई फील आई वेंट अगेंस्ट ग्रेस. मेरे श्री गुरु का गाइडेंस मुझे आया था टू नॉट गो अहेड विद इट. And that's it. I'll just leave it there. हाँ. So उसमें आपको कभी कुछ हार्ड लेसन सीखने होते हैं ना जीवन में. बिल्कुल बिल्कुल. फिर वो ऐसे हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ, आजकल जो चल रहा है कि प्यार में जो है ना, लड़कियाँ लड़के भी हम इतने ज़्यादा सब ब्लर हो जाता है हमारे पास कि हम किसी के सुनते नहीं हैं. हमें लगता है जो है यही है, हम जी नहीं पाएंगे. इस तरह की थॉट जो है कहीं ना कहीं ब्लाइंडेड हो जाते हैं, ब्लाइंडली इन लव हो जाते हैं. ऐसी चीजें भी होती है, कितनों के साथ हुआ है. और अभी तो अगर बात करें तो दूसरा पहलू प्यार का ये है कि आजकल सिचुएशनशिप आ गया है, आजकल बेंचिंग आ गया है, ब्रेड क्रमिंग आ गया है, वन नाइट स्टैंड आ गया है. आजकल प्यार के मायने बदल गए हैं यंगस्टर्स में. अगर आप देखें इन चीज़ों को तो सोशल मीडिया के आने से ऑप्शंस आ गए. स्टैंडर्ड्स लो हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स हम अपने चेंज कर रहे हैं. और टाइम टू चेंज दैट नैरेटिव. Time to really start a brand new story and say, let's rise in love and not fall in love. Yeah. Love yourself so much that you don't accept anything but the best. Don't settle for less. इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाड़ी बंगला और ये सारी चीजें चाहिए. इसका मतलब ये कि आप एक दूसरे की जर्नी में कंट्रीब्यूट करें. Love has to be so pure and so divine. जैसे हम कहते हैं कि अर्धनारीश्वर. आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. यू आर होल विद इन योर सेल्फ. आप किसी के अंदर कोई चीज ढूंढने नहीं जा रहे हैं कि वो इंसान मुझे ये देगा. दैट्स नॉट द वे. एंड एनीवेज आई नेवर बिलीव्ड इन इट. आई नेवर ग्रू अप, यू नो, दैट दोज आर नॉट माय कॉन्सेप्ट्स. आई ऑलवेज बिलीव कि एक दूसरे के साथ साथ चलने में, एक दूसरे की ग्रोथ में, एक दूसरे को एनकरेज करने में, एक दूसरे के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, और एक साथ मिलके एक भाव से ना सिर्फ आप गृहस्थी बसाइए और आप समाज की भी सेवा करिए. बिल्कुल. आप देश सेवा भी करिए. कोई ऐसा कार्य करिए कि आपके जोड़े से, आपके मिलन से कल्याण होना चाहिए लोगों का. That is very important to understand. So you need to go beyond yourself. You need to have that spiritual aspect in a marriage or in a partnership. जहाँ पर आप सोच के ये बोलें कि हम दोनों साथ में आए तो अब क्या टैलेंट से हम आगे दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं. That is very important. Very important. नहीं तो आप सेल्फिशनेस में रह जाओगे. उसने मुझे फोन नहीं किया, उसने ये मेरा नीड नहीं पूरी करी. इन्हीं स्मॉल थिंकिंग्स में फिर हम रह जाएंगे तो हम उससे बढ़ के आगे कब बढ़ पाएंगे. So we be the driving force of our own happiness and not let that other person be the driving force of your happiness. But it needs to be a co-partnership. It has to be a togetherness. You know, you have to leave your selfishness को तो पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर आप को पेरेंटिंग भी नहीं कर पाओगे ठीक से. पेरेंटिंग में भी हम देख रहे हैं इतने चैलेंजेस हैं लोगों के अंदर कि दे आर नॉट इवन एबल टू हैव बेसिक सिविल कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन चाइल्ड. सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग वेरी पुअरली ना, कि आप इतना भी नहीं पार्टनरशिप निभा पा रहे हो.
जो कि हमारे प्रीवियस जनरेशंस ने कितना सुंदर तरीके से वी सीन। कस्में वादे नहीं, जीने कस्में के वादे तो बहुत बात की बात हो गई, बट इट्स नॉट लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स या 2-3 जनरेशंस पहले उनके डिफरेंसेस नहीं हुए होंगे, हुए होंगे बट दे न्यू हाउ टू मेक द मेन थिंग्स मेन एंड द थिंग्स एंड दे न्यू हाउ टू डिफरेंसेस। इसको फंक्शनिंग कैसे रखना है। ये संसार की गृहस्थी की एक गाड़ी चल रही है, उसको कैसे चलते रहना है। एट वन पॉइंट somebody has to let go of their ego. यस। अभी वो बोल रहा है ना, अगर उसको गुस्सा आया हुआ है, मैं शांत हो जाती हूँ। सो गर्ल्स का इसमें, विमेन का, उसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान आता है। आई पर्सनली कम टू बिलीव दैट विमेन व्हेन वी स्टार्ट टू थिंक ना, मेरा ईगो, मेरा करियर, बहुत मैं एजुकेटेड हूँ, मेरा बिजनेस, तो फिर फैमिली नहीं चल सकती है। So delaying marriage too long is also not a good thing in society पर today. लड़का भी तो मिलना चाहिए ना उस तरह का। हाँ, आजकल बिल्कुल लड़के मान्य है, लेकिन आपकी थिंकिंग तब तक फिर वैसे ऑल्टर हो जाती है, फिर आप बिल्कुल। बहुत ज्यादा अपने थॉट प्रोसेसेस में मैच्योर्ड हो जाते हैं, यू नो, परिपक्व जिसको कहते हैं हम लोग। जी। सो दैट आल्सो हैज टू बी वॉच्ड। देन इट्स ओके, जो लड़का मिल रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको कोई मिले तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसमें उसमें खुश रहना सीखना है हमें। हमारे को भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंसेस आ गए हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, हनीमून में ये लेके जाना चाहिए और ऐसे कपड़े होने चाहिए और ये डिनर्स होने चाहिए और ये Yes, Chopra and रोमांस Shahrukh का Khan पता need to be नहीं। blamed for this. ओ आई एम नॉट हियर टू ब्लेम एनीबडी, बिकॉज हम ब्लेम करेंगे तो हमारा पावर चला गया। बट हम कह रहे हैं कि हम उसको इन्फ्लुएंस को लें क्यों, हम उसको इन्फ्लुएंस को ना लें अपने ऊपर। दैट्स एंटायरली इन आवर हैंड्स। Yes. एम आई राइट? आपका एक पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहती हूँ। जी जैसे कि जरूर। सुचित्रा कृष्णमूर्ति आई थी मेरे शो पे, हाँ जी। मलाइका अरोड़ा से भी मैं मिल चुकी हूँ, उनसे भी ब्रीफ इंटरव्यू तो नहीं किया, बट ब्रीफ मेरी बात उनसे बहुत पहले हुई थी। तो इन सभी ये सब डिवोर्स से गुजर चुकी हैं, और मलाइका तो बहुत बात भी किया है इसके बारे में, यू नो, उनकी जो व्यथा थी। तो इन सब ने ये ज़रूर कहा कि वी हैड टू गो थ्रू सो मच एंड वी हैड टू हसल अ लॉट बीइंग अ डिवोर्सी इन इंडिया। आई थिंक एक अलग टैग समझते हैं डिवोर्सी को और बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। क्या आपके साथ भी समाज में, क्या समाज, सोसाइटी का जो एक आपकी तरफ एक एक जो देखने का, समझने का, सुनने का तरीका था? डेफिनेटली यू कम टू नो आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। आपके जब डिफिकल्ट टाइम आता है तो यू नो कि मेरे रियल मेरे साथ में जीवन में कौन मेरे साथ निभाने वाला है, और उसमें जी। शायद गिनती के 1 या 2 जने ही होते हैं। एक्चुअली उससे ज़्यादा लोग होते ही नहीं हैं आपके बिल्कुल। जीवन में। बट hustle, I don't know if that's a word I can even relate to, because I don't work in that kind of a profession, or I don't do those things where I feel कि- Financially maybe? No, I've always led a very simple life. I don't have too many fancy जिनकी आदत लग जाती things। है हाँ, इस तो इंडस्ट्री। मेरा जीवन ही मैंने ऐसे रखा है कि मैं अपने अध्यात्म की ओर, अपने साधना, अपने प्रैक्टिसेस की तरफ, रिसर्च, स्टडी, अपने आप को ही संभालना संभाला खुद को ही, खुद ही संभालना एंड पड़ता है। जो मैंने, जैसे आपसे मैं कह रही थी कि मैंने जो ट्रेनिंग्स ली हैं आयुर्वेद में, गर्भ संस्कार में, बच्चों के शिक्षण को लेकर जी। के, एनवायरनमेंट को लेकर के, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, तो ये सारी चीज़ों का जो है मेरे माइंड पे, उसका जो एक चेंज आया है मेरे अंदर, टू अंडरस्टैंड कि आज के समाज के इश्यूज क्या हैं। जैसे आप बोल रहे हो कि समाज, तो मेरा समाज ही अलग है। आपका समाज अलग है, आपकी दुनिया मेरे अलग। समाज का अंडरस्टैंडिंग ही अलग है। मैं समझती हूँ हम समाज को क्या कंट्रीब्यूट करें, हम वो देखें, rather than being so worried कि how is a samaj treating me. If samaj is treating me in a certain way, it's their problem, it's not my issue. My concern is कि मैं इस देश की सेवा के लिए किस तरह से खरी उतर रही हूँ, and that is what I need to work on. अब जो लड़कियां हैं जो बिल्कुल प्यार में कहीं ना कहीं बहुत खो जाती हैं और टॉक्सिसिटी का शिकार बन जाती हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से रिश्ते से बाहर निकलें? क्या वो कौन Fight back. कोई ऐसी Do दो not चार एडवाइस? fight back, not just from that person. मतलब आप उस व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, या आप उस रिलेशनशिप या उस सिचुएशन का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों का विरोध कर रहे हैं जो आपको अलाउ कर रही हैं वो सारी नेगेटिविटी को टॉलरेट करने के लिए। तो आप अपने आप से फाइट बैक करेंगे। आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो वो चीज़ दूसरा देख रहा है और वो उस तरह से आपको ट्रीट कर पा रहा है। तो हम क्यों वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई प्यार देगा या मुझे ऐसे कोई बात करेगा। हम ये
पावर स्ट्रगल में क्यों हैं, ये प्रश्न हमको उठाना है एज वुमेन। जबकि हम उस देश से हैं और उस संस्कृति और सभ्यता से हैं जहाँ पर कि देवी को हम पूजते हैं, हम नारी को देवी का रूप मानते हैं जी। और हम सशक्त हैं, हमारे अंदर उतनी वो सारी क्वालिटीज हैं, then why are we letting ourselves feel small about ourselves? That is the question to क्या be शादी asked. अभी जरूरी है? शादी बिल्कुल जरूरी है। ऐसा शादी क्यों कह बहुत रही हैं आप? शादी जरूरी है। विवाह संस्कार होता है एक, और विवाह संस्कार पूर्ण करने से ही एक नारी जो है वो माता बन सकती है। माता बन के वो अपने धर्म और अपने जीवन को जो है पूरी तरह से सिद्ध कर पाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। अगर अच्छी माताएं अपने आप को आगे बढ़कर और अच्छे बच्चों को जन्म देके और उनको अच्छी परवरिश ना दें तो संसार समाज हम किसको कहेंगे? आपको नहीं लगता कि एक्ट्रेसेस लाइक सुष्मिता सेन अडॉप्ट कर रही हैं? आजकल अडॉप्शन बहुत हो रहा है, तो बिना शादी किए भी बच्चा हम कर सकते हैं। आपका क्या विचार है I इस पे? personally don't believe in adoption for various reasons. ओके। हाँ, I personally don't believe in it. जिन्होंने किया है वो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है या उनकी अपनी थॉट प्रोसेसेस होती हैं। आई फील कि एक बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एज आई सेड इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट माई थिंकिंग एज आई सेड मेरी बहुत सोच में फ़र्क है। मैं सोचती हूँ कि मैं उनकी सेवा में किस तरह से लगूँ जहाँ पर कि 100 बच्चों का कल्याण हो सके। सो दैट्स वेयर आई, instead of me thinking that I want a child, how can I contribute to the children of the world? राइट। That's the way that I look at it. So वो लेंस में थोड़ा सा फिल्टर में शिफ्टिंग है। तो शादी करे, बच्चा करे, ये एक प्रोसेस को आप बिल्कुल बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, लेकिन उसको सही तरीके से समझ के करें। अपने आप को पहले जानें। आपका स्वधर्म है अपने आप को जानना, आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उसको आप केवल और केवल ध्यान साधना से ही जान सकते हो। सो द मोर दैट वी आर पार्ट ऑफ अ नॉइज, वी आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू कम टू नो अबाउट आवरसेल्व्स। आजकल रिश्ते में ना बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है। आजकल चीटिंग बहुत हो रही है, इनफिडेलिटी बहुत हो वही रही है ना है। नंदिनी, दूसरी चीज में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, हमको तो रिश्ते अंतर को की तोड़ तरफ। तो नहीं सकते ना? मतलब एक हद तक कुछ हो तो ऑफ कोर्स तोड़ सकते हैं, लेकिन आजकल मेजॉरिटी में देखती हूँ तो डिवोर्सेस हो ही रहे हैं, डिवोर्स केस बहुत बढ़ रहे हैं, कल्चरली औरतों का शोषण हो रहा है। कल्चरली बहुत सारा कुछ, जैसे मैंने कहा आपको, चेंज हो गया है। a lot has to do with the kind of media that people consume and they think ये नॉर्मल है, ये इसको रेगुलराइज कर दिया गया है। सो वैल्यू सिस्टम हमें अपना स्वयं का देखना है, समझना है, मैं ये क्यों कर रही हूँ, इससे मुझे ऐसा क्या प्राप्त हो रहा है जो कि मैं अपने आप को नहीं दे सकती हूँ। क्या हम अपने आप से इतना खुश नहीं रह सकते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं? सेल्फ मास्टरी नहीं आ सकती है हमारे अपने डिजायर्स पे, हम ऐसा रिस्ट्रेंट नहीं लगा पा रहे हैं, हम लोग इतने कैरिड अवे हो जा रहे हैं। सो दीज आर क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। कभी जिंदगी में ऐसा कभी मौका मिले आपको जहाँ एक अच्छे इंसान से आप मिले, क्या शादी को दोबारा मौका देंगी आप? मैंने नहीं सोचा इस बारे में, बिकॉज एज आई सेड माय विजन एंड माय मेरा जो सेवा भाव का एक जो मेरी जो संकल्प है जो मैंने लिया हुआ है वो बहुत अलग ही लेवल पर है। सो फॉर दैट मेरा थॉट प्रोसेस इस दिशा में जाता ही नहीं है। एंड आई एम एब्सोल्युटली एंड थॉरली डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू माय मदरहुड जर्नी। तो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाउ इज योर सन? He's doing well. He's 15 and a half now. अभी दाढ़ी वगैरह आ गई है। अभी अच्छा, अभी मैं puberty सोचती is हूँ ये just बेबी hit. था, अभी ये बड़ा सा लड़का हो गया है। टाइम इज फ्लाइंग। अब मुझे पता है आप उनको बहुत खूबसूरती से आपने उनको रेज किया है, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अलग तरीके से हुई है, बी इट हिज एजुकेशन, एवरीथिंग। लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था, और वो बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं, उसको इनकलकेट भी कर रहे हैं। ये मेरा भाग्य है कि उन्होंने मुझे माँ बनाया है, और बहुत कुछ शेयर करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ में। It's a very You are happy, you are sacred. in a bliss. Yeah, that's what I shared with you last time also. I'm in a space where I'm very content with whatever I have in life. I'm किसी very चीज की grateful also. अभाव किसी चीज का आपको नहीं नहीं, लगता? बिल्कुल भी नहीं। I feel very blessed, very fortunate, very grateful. एक ऐसी चीज जो आपके अंदर हो, एक ऐसी खूबी जिस पर आप बहुत नाज करती हैं। I don't think कि उसका उत्तर मुझे देना चाहिए कि मुझे अपनी किस चीज़ पे नाज है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो अपने लिए बहुत पर्सनल होती हैं, शायद वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता ठीक पाऊंगी। है।
फिर कभी बताऊंगी। शायद कोई और बता सकता है कि उनको मेरी किस चीज पे जो है वो अभिमान अब वो है। कौन बता सकता है, मुझे तो पता होना चाहिए, तभी तो पूछूंगी मैं उनसे। हाँ आप मुझे वो आप ही बता दो मुझे इससे अच्छा ऑफ कैमरा। ठीक है, ऑफ कैमरा के लिए रखेंगे फिर वो। डन। मीडिया में ऐसे बहुत ये है कि युक्तामुखी कहाँ है, वेयर इज शी लॉस्ट, ब्यूटी हु इज लॉस्ट, इनको फिल्में मिलना बंद हो गई, आज कहाँ है, किस हालात में है युक्तामुखी। ऐसे बहुत सारे आपके बायोग्राफी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जी और बहुत अजीब लगता है। सो प्लीज आप बता दें मीडिया को कि या दुनिया को कि युक्तामुखी कहाँ है और क्या कर रही है। वेरी मच प्रेजेंट है और अपने अध्यात्म की जर्नी पे हैं, अपनी साधना की जर्नी पे हैं। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग नंदिनी, आपके पॉडकास्ट जो लास्ट ईयर हमने किया था उसके बाद आई हैव डन सम वेरी इंटरेस्टिंग अदर पॉडकास्ट, मतलब आपसे शुरुआत हुई है। श्री गणेश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई वुड एनकरेज व्यूअर्स कि आप वो 2-3 चैनल्स के हम लिंक्स जो हैं इसके नीचे पोस्ट भी करेंगे, मैं बता भी देती हूँ। एक सत्यमेव जयते पर हमने बहुत सुंदर पॉडकास्ट दिया, आई रियली एंजॉयड इट। I'll watch it. और एक ब्रीदिंग हिस्ट्री चैनल है, I have watched this one. वो हमने किया इस साल और वो हनुमान जयंती पे रिलीज हुआ। सो क्या बात है। दोज 2 पॉडकास्ट के द्वारा आपको पता चलेगा कि युक्तामुखी कहाँ है, क्या कर रही हैं, अभी उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। एंड दिस टुडेज पॉडकास्ट हैज बीन वेरी डिफरेंट टू दोज 2 सब्जेक्ट्स। तो I इनका know. कंटेंट और हमारे में बहुत जमीन अलग, आसमान का बिल्कुल फासला है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। पिछले पॉडकास्ट पे हमने उस तरह की बातें की थी। जी ये जी 2 घंटे का पॉडकास्ट था वो हमारा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आया था। यस, इसलिए यहाँ हमने सोचा कि थोड़ा फिल्मी मंत्रा हो जाए। फिल्मी मंत्र, फिल्मी बातें, थोड़ी ग्लैमर की It's बातें been a हो जाए। pleasure. It's Thank been you a for always doing pleasure. this with Thank me. you, and thank you for having me. I really appreciate and I value our friendship, our sisterhood, and it means a lot to me कि आपने मुझे बुलाया as a guest. आप आई और आप मेरे साथ खड़ी रही हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपको। I What a love you. blessing है. Love you too. Please dear. convey my regards to your son. Absolutely, absolutely. Without his support, I wouldn't have been here. अच्छा? Yeah, absolutely. He's fully in support of Mama. It's your podcast. आप कौन सी साड़ी पहन रहे हो? मैं क्या करूँ? How do I need to be there for you? And you know, even when I was sort of getting ready, आपके लिए कुछ चाहिए मैं ला देता हूँ. Very sweet, very kind, Thank you very so blessed much. to be his Mama. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. This was Yuktamukhi. I would insist you all to watch this interview and let me know in the comment section what you think about this interview. There's a lot that you can take away from this interview. Stay tuned. This is me, Nandini Roy, signing off. Thank you.